myself, Vishwas. Hello, everyone. Very good evening. Myself, CA Vishwas Jindal. I'm a chartered accountant by profession and a young chartered accountant. So, thank you all for joining in this session. This session is being conducted on subsidy and grant accounting and has been conducted by Federation of Indian Economic Affairs. So, this FIEA is a distinguished organization committed to continuous knowledge sharing and professional development. It consistently endeavors to deliver fresh insights and valuable expertise, working diligently towards the professional growth and upliftment of individuals across various sectors. Right. So I would like to first invite CA Adeep Veer Jain ji, who is the secretary for FIA, for his words of wisdom. CA Adeep ji is secretary of the Federation of Indian Economic Affairs. Is a highly respected and senior chartered accountant with a remarkable legacy of around 99 years. Renowned for his deep expertise and unwavering commitment to the profession, he remains socially active and is always willing to guide and mentor fellow professionals. His dedication to service and professional excellence continues to inspire generations within the financial and economic community. Over to you, Adeep ji. थैंक यू विश्वास जिंदल जी। फेडरेशन की तरफ से मैं सीए आदित्य पीर जैन आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम सबकी तरफ से मैं अपने दोनों स्पीकर्स लर्नर स्पीकर्स सीए सचिन जी और सीए मंगल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी फेडरेशन के वेबिनार के लिए और हमारे साथी व्यूवर्स के लिए निकाला। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो अपने आप में बहुत यूनिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों ने बहुत कम प्लेटफॉर्म पे इन टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार या डिस्कशन सुना होगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ दो लर्नेड स्पीकर्स हैं, एक सचिन जी हैं, मंगल जी हैं, जो इन दोनों टॉपिक पे आपको बखूबी गाइड भी करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है। अगर कोई भी हमारा दोस्त इस पर्टिकुलर सेशन में किसी स्पीकर से कुछ पूछना चाहता है तो वो या तो चैट के अंदर अपना क्वेश्चन लिख सकता है या वो हाथ रेस कर सकता है। जो हमारे मॉडरेटर हैं विश्वास जी और सोनू जी, वो उनके क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे और हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पीकर से कि वो हमारे दर्शकों के कोई भी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करें। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं विश्वास जी से कहूंगा कि इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं और हमारे स्पीकर्स की तरफ चलें। धन्यवाद। Thank you, Deep ji. This was helpful. So, moving on in the session, I would like to first invite Mr. CA Sachin Tulsian ji. CA Sachin Tulsian ji is a distinguished member of the Chartered Accountants Institute since 2007. He is the co-founder and a partner at a CA firm as well. With over 17 years of post-qualification experience, he has excelled in various fields including MSME advisory, corporate finance, private equity, merger and acquisition, and India entry services. Sachinji is actively involved in numerous social and professional organizations in Mumbai. He is holding key positions such as Vice President of RVG Alumni, Treasurer of Junjunu Pragati Sangh, and Rajputana Shiksha Mandal. He is also a member of All Maharashtra Mushroom Growers Association and Bharat Vikas Parishad. A regular speaker at seminars, Sachinji has delivered over 100 presentations on MSMEs at platforms such as WIRC of ICI and various other ICI study circles in Maharashtra and Gujarat. His extensive experience and active participation in professional communities highlight his commitment to the growth and development of the MSME sector. Today, Sachinji will share his insights and knowledge drawing from his rich professional background and seminar engagements. Please join me in welcoming Sachin Harikishan Tulsianji. Over to you, Sachinji. Thank you, Vishwas Bhai, for such a detailed about me. I think it was a very detailed introduction you have given, and thanks to Federation of Indian Economic Affairs for inviting me to such a prestigious organization wherein you are serving members. I hope all the members are chartered accountants in this federation, and very thanks to my dear friend Abhishek Jain, Adeep ji, Vishwas ji, Uttam ji for inviting me to your this organization for this session on MSME.
So without taking much of time, I think I have been allocated around 45 to 50 minutes. So we'll come to this topic. Being all the listeners are professional chartered accountants. So friends, today we'll take this session and I'll keep try to keep it in Hindi or English. हम लोग दोनों में रखेंगे तो I think जी it will सर। be perfect है तो हम लोग मिक्स लैंग्वेज में we'll try to connect with each other और we'll try to see what lies for us we chartered accountants as a professionals in MSME practice, which I am doing from last 15 years along with my other area of practices, loan syndication, audit, taxation. So this is again one of the area which I found, to be very lucrative for we chartered accountants, and we can add value to our clients. Along with that, when we add value to the clients, it certainly adds to the value to our practice also. So we'll take I'll just on my presentation मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. Is the screen visible? हाँ जी सचिन जी, we can proceed. Okay. So friends, without taking much of time, just a minute. We'll take a bit of flow of today's presentation. हम लोग क्या क्या कवर करेंगे. डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई क्विकली 2 मिनट के अंदर हम लोग डेफिनेशन डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि 2006 में जब एमएसएमई एक्ट आया था उसके बाद में से सीधा डेफिनेशन 2020 में चेंज हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी. और अभी रिसेंट जो बजट 2025 में आया उसमें दे अगेन रिवाइज दिस डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. क्विकली हम लोग देखेंगे. देन various subsidies and incentives for MSMEs by central government as well as state government. State government, today's topic is for central government, so we'll try to cover 3 to 4 policies. Friends, let me tell you, एक एक पॉलिसी के लिए हम लोग एक सेशन रख सकते हैं बट बीइंग स्लाइटली शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग विल आई विल ट्राई टू कवर 3 से 4 पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की विच आर फॉर इंडस्ट्रीज. जो अगर आप सेटअप करते तो आपको वेरियस इंसेंटिव सब्सिडीज मिलती हैं. In which apart from that we'll try to take agar time allows then production link incentives against central government schemes for large corporates as well as MSMEs. Some other opportunities for chartered accountants in MSME practice. Then fundraising opportunities for MSME, GEM, Trades Portal, MSME समाधान. ये सब पे तो I think काफी time लग जाएगा but I've prepared a detailed presentation. Our focus would be primarily on central government subsidies schemes for MSME. तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विद दिस एक 2 मिनट के लिए मैं आपको आई जस्ट ट्राई टू टेक यू थ्रू दिस यूनिवर्स ऑफ एमएसएमईज की. इतना जो हम लोग ने पिछले 8-10 सालों के अंदर एमएसएमईज के बारे में सुना है तो व्हाई सच काइंड ऑफ नॉइज फॉर एमएसएमईज और उसके थोड़े से रीजंस है, कारण है. सो व्हाट आर दीज रीजंस? देर आर टोटल 6.5 करोड़ एमएसएमईज इन इंडिया. 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं अपनी कंट्री के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर. अब मैं आपको इसको लिंक करने के लिए 2-3 डेटा पॉइंट्स देता हूं. एंटायर फ्रांस या फिर जर्मनी की पॉपुलेशन ही 7-7.5 करोड़ है. सो वहां पे जितने पॉपुलेशन है उतनी हमारे यहाँ पे एमएसएमईज है. सो ट्राई टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ एमएसएमई. आउट ऑफ दैट 4.37 करोड़ आर रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल, जिसमें से मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 4 करोड़ 29 lakhs आर माइक्रो, 7 lakhs स्मॉल एंड 67,000 मीडियम. So these figure for medium are very less, but still 4.37 crore MSMEs are registered. Now, second data point. MSMEs contribute 30% टू द जीडीपी ऑफ इंडिया. आज की डेट में हमारे कंट्री की जीडीपी जो हम लोग 3.5 ट्रिलियन यूएसडी का बात कर रहे हैं, मोटा मोटी अगर हम लोग इसको रुपीज लैक्स में कन्वर्ट करेंगे इट इज 400 लाख करोड़ का हमारा जो जीडीपी है उसमें से 30% इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमईज. 1,20,000 करोड़ की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आ रहा है. नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग 45% टू द एक्सपोर्ट्स एंड 40% टू द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑफ इंडिया, which are very big figures and very important figure now coming.
MSMEs are generating direct employment of 15 crores in a population of 140 करोड़ का पॉपुलेशन में 15 करोड़ these MSMEs are generating 6.5 करोड़ जो हम लोग ने MSMEs का बात किया है। एक MSME में ऑन एन एवरेज अगर दो लोग भी काम करते हैं तो ये फिगर आपको 14-15 करोड़ के आसपास आ जाता है। तो सी द स्ट्रेंथ ऑफ MSMEs। ये तो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ। नाउ फ्रेंड्स टेक एन एग्जांपल, अगर एमएसएमई एक या दो किसी अकाउंटेंट का कोई इंजीनियर का और हेल्प लेती है आउटसाइड से, कुरियर बॉय हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, तो अगर एक का भी एडिशनल उसने हेल्प लिया, सो दीज 6.5 और 7 करोड़ एमएसएमईज आर जनरेटिंग ए एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 21-22 करोड़ इन दिस कंट्री ऑफ 140 करोड़। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक एनीथिंग। और फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म से, आई एम नॉट प्रो टू एनी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी अच्छा काम करी है, प्रीवियस गवर्नमेंट भी अच्छा काम करी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये गवर्नमेंट, इन दिस करंट गवर्नमेंट, दे आर प्रो बिजनेस। उनको पता है हमारी वोट बैंक, सो दे ऑलवेज डू कैलकुलेशन एज पर देयर वोट बैंक, जहां पे उनको वोट मिलेगा उनको वो सपोर्ट करेंगे। सेम वे व्हेन दे सॉ दीज फिगर्स, एमएसएमई जो 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट करी है, 45% एक्सपोर्ट्स के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके दे आर जनरेटिंग 21-22 करोड़ एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। So how they can leave these MSMEs behind? That's the reason in last 10 years you have seen lot of central government incentives, MSME incentives, subsidies। MSME के अंदर आप जैम पोर्टल देख लीजिए, समाधान देख लीजिए, ट्रेड्स पोर्टल देख लीजिए, all these are have come after 2014। So this government has tremendous focus on MSMEs। That's the reason you must be seeing state government में there are a lot of incentives which state governments are giving, as well as central government has also made various incentive subsidies policies for MSMEs। So that was the background about how government has so much focus on MSMEs, and they are trying to help MSMEs so that they can compete with large corporates। So there are some challenges: lack of enough finance with the MSMEs, timely recovery of dues, competition from large businesses, lack of skilled laborers to operate. So for all these reasons, government has bring up various subsidies, central government, state government, GEM portal, trades portal, MSME Samadhan, Section 43BH, which we have heard in last couple of years a lot on various platforms। So they are trying to reform this sector। एमएसएमई के ऊपर काफी फोकस है गवर्नमेंट का। इस बजट के अंदर भी जो उन्होंने 4 पिलर्स बताए थे, आउट ऑफ दोस 4 पिलर्स वन ऑफ द पिलर इज एमएसएमई, एग्री, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स। दीज वर द 4 पिलर्स। आपने देखा होगा सीजीटीएमएसई के अंदर अर्लियर द कवर वाज अप टू 5 करोड़ ऑफ रुपीस loan to the MSMEs collateral free, which now has been increased to 10 crores in this budget। And there are various incentives, this budget also has been declared for MSMEs in budget 2025। So not taking much of time now, come to the definition of MSME। So friends, here is the revised definition of MSME enterprise, which came in 2025 budget, and it is applicable from 1st April 2025, wherein micro enterprise investment in plant and machinery 2.50 crores and turnover is up to 10 crores, small 25 crore 100 crores, medium 125 crores 500 crores। So just for the sake of remembrance, अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर का जो रेशियो है वो 1:4 आ रहा है, 2.5 से 10, 25 से 100, 125 से 500। सो जस्ट सो दैट वी कैन रिमेम्बर। यहाँ पे एक तो स्लाइड चीजें इंपॉर्टेंट है विच आई ट्राई टू टेक इन दिस डेफिनेशन। Here it is talking about investment in plant and machinery only। So friends try to understand, medium enterprise का definition है turnover up to 500 crore and investment in plant and machinery up to rupees 125 crore। So just take an example, अगर कोई MSME के पास में लैंड और बिल्डिंग के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, सपोज वहां पे 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 120 करोड़ का है, टोटल इज 170 करोड़। बट एज पर द डेफिनेशन, फॉर treating whether it is MSME or not, only investment in plant and machinery would be considered। So if it is less than 125 crore, apart from that, लैंड में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट होने दीजिए, बिल्डिंग में कितना भी इन्वेस्टमेंट होने दीजिए, बट जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट रहेगा वही कंसिडर होगा। सो इन दिस एग्जांपल विच आई जस्ट गिवन, अगर 120 करोड़ का आपका प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड और बिल्डिंग में और 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है, स्टिल योर एंटरप्राइज वुड बी मीडियम एंटरप्राइज। सेकेंड एक इसमें स्लाइटली इंपॉर्टेंट आ जाता है
whether export turnover is included in this definition of turnover of 10 crore, 100 crore or 500 crore. So in short and sweet, government wants to promote exports and they have categorically excluded from the definition of turnover in MSMEs. आपका अगर MSME का 400 करोड़ का डोमेस्टिक टर्नओवर है, एक्सपोर्ट टर्नओवर और 500 करोड़ का होने दीजिए उस कंपनी के अंदर, टोटल 900 करोड़ का टर्नओवर हुआ, स्टिल as per definition you would be classified as a medium enterprise MSME because your domestic turnover is less than 500 crore, which is 400 crore in this example. So these were the two important things which I wanted to discuss in the definition of MSMEs. ये सब हमको आगे सब्सिडीज के लिए भी काम आएंगे, because whenever we analyze any proposal, जब हमारे पास में हमारे क्लाइंट का आता है, तो we need to see whether he is MSME or not. So for all those things, this definition would be helpful for us. That was the important reason for taking it here. एक इसके अंदर छोटा सा और इम्पोर्टेंट है, वेदर होलसेल रिटेल ट्रेड इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई. सो फ्रेंड्स, एक स्पेसिफिकली जीआर आया था गवर्नमेंट के, इन विच दिस टोल्ड दैट एमएस होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स आर, काफी बार हमारे क्लाइंट्स के पास हमारे पास में आता है कि वेदर wholesale retail traders are MSMEs or not, but they are not MSMEs. They are given the registration under Udyam registration only for a single and only purpose, which is to take the benefit of priority sector lending. MSMEs के लिए priority sector lending के अंदर reduced rate of interest है, just to take that benefit they can take the MSME registration, but कोई subsidy के लिए उनको benefit नहीं है. उद्यम MSME समाधान में they doesn't have any benefit. 43BH उनके लिए लागू नहीं होता है, ट्रेड्स पोर्टल उनके लिए लागू नहीं है, जेम पोर्टल नहीं है. सो दे कैन टेक बेनिफिट ओनली ऑफ दिस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, बट दे आर एक्चुअली नॉट एमएसएमई. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन व्हिच आई वांटेड टू कवर. एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं एमएसएमई को, जो हम लोग क्विकली देख लेते हैं. आपको वेरियस स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिल जाती है. आपके जो क्लाइंट्स हैं, इफ दे आर रजिस्टर्ड एमएसएमई, सो दे कैन गेट ऑल दीज एलिजिबल फॉर registration of GEM portal. GEM portal, I think we chartered accountants, we must have heard this. This scheme was came in 2021-22 के अंदर ये आया था. तो it's a portal wherein MSMEs can go, और वहाँ पे government buyers can come and they can float their tenders and MSMEs are getting benefit. Friends, एक इसके अंदर slightly important thing for the chartered accountants also, क्योंकि we also look कि हमारे लिए भी कोई benefit है उसके अंदर. So as per the circular of I think July 22 में ICA came up with the circular wherein they declared that chartered accountant firm can also register as an MSME and they can approach on the GEM portal for if any of the services are being required by the service seeker, then they can give their services through GEM portal. तो इफ वी सीएस, हमारी फर्म्स अगर कहीं पे जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वी कैन ट्राई टू रजिस्टर एंड इट इज अ यूजफुल पोर्टल फॉर अस. देन ट्रेड्स पोर्टल, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग, आई थिंक इन लास्ट 4-5 years इट हैज पिक अप लाइक एनीथिंग. एमएसएमई को बहुत बेनिफिट मिल रहा है ट्रेड्स पोर्टल से. एमएसएमई समाधान इज अगेन, अगर किसी का एमएसएमई का पेमेंट रुक जाता है टू एनी लार्ज कॉर्पोरेट जिसको भी उसने सप्लाई किया हो, दे कैन गो इंस्टेड ऑफ कोर्ट प्रोसेस through this MSME समाधान and they can try to recover their money. Eligible for classification under priority sector lending. ये हम लोग को सबको पता ही है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर एमएसएमई के लिए स्पेशल रेट्स है. नॉर्मल रेट्स है 25 basis points, 50 basis points. They can get the loan at a cheaper rate. CGTMSE collateral free loans के लिए भी again MSMEs are eligible. So earlier limit was 5 crores, now it has been increased to up to 10 crore rupees. So I think these benefits, if we are aware, we can educate to our clients and we can professionally also engage with for these services with our clients, to by providing these services. Eligible for machinery finance under SIDBI. SIDBI की बहुत सारी schemes हैं MSMEs के लिए. We all are aware SIDBI is basically for the development of manufacturing MSME sector. So they can take benefit. Then section 43BH, I think बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं ये सब चीजें नहीं कवर करूंगा बिकॉज आवर टुडेस टॉपिक इज ऑन एमएसएमईज. बट अगेन सेक्शन 43BH का भी बेनिफिट एमएसएमईज दे कैन टेक. Now, friends, directly coming to our today's important topic, what are the various incentives and subsidies? Friends, first let me tell you
As a chartered accountant, when I also started earlier, I was in job, and when in 2011-12 I came into practice. I was also looking for, along with my other areas of practice, fundraising, which I have done my job days, also merger acquisitions, private equity, listing of the companies. So I was looking for a field which is slightly, different and can add actual value to the client. So during those days, I came up with an opportunity जहाँ पे मैंने explore किया along with the fundraising, and with the God's grace, in first transaction we could raise the subsidies also for that MSME client, and that is how journey started. So I would say along with the traditional practice, MSME सब्सिडीज इंसेंटिव्स भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आज के डे में out of almost 30 states, 20 states have their state incentive policies for MSMEs. 20 states के पास में उनकी खुद की incentive policies है. महाराष्ट्र, since I'm in मुंबई, महाराष्ट्र में तो it is from 1961 से they have their industrial policy जहाँ पे वो MSMEs को support करते आ रहे हैं, various incentive subsidies दे रहे हैं. Same in गुजरात, आप हरियाणा में देखेंगे. Nowadays in Jammu Kashmir also they have come up with the incentive policy. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी सेक्टर वाइज स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट. सो जो भी आप सेक्टर बोलेंगे सबके लिए उनकी डिफरेंट, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए दे हैव सब्सिडी. तो गवर्नमेंट का काफी फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मेक इन इंडिया जो हम लोग हमेशा सुनते हैं. तो PLI जिसके लिए गवर्नमेंट लगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स, MSMEs. तो देर आर ऑलमोस्ट 300 पॉलिसीज फॉर ऑल द सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग पॉलिसीज की बात करें तो खाली महाराष्ट्र में देर आर 30 पॉलिसीज फॉर वेरियस सेक्टर्स, या फिर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैं खाली महाराष्ट्र में 30 पॉलिसीज है फॉर MSMEs. So you can just see the focus of the government, how they are supporting. अगर हमको इन इंसेंटिव सब्सिडीज पॉलिसीज के बारे में मालूम है, we can guide to our client and it creates a long term value for we chartered accountants. हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं सब्सिडीज दिलाने के अंदर. डॉक्यूमेंटेशन हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विल सी क्या क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. बट these kind of practice areas can certainly make a long term relationship with our clients. अब मैं कई बार कुछ प्लेटफॉर्म से बताता भी हूँ. देखिए, ऑडिट सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज होती है, इट इज लाइक कंपल्शन फॉर द क्लाइंट्स, उसको वो करवानी है ड्यू टू कंपल्शन, ड्यू टू लॉस. बैंक फंडिंग होता है, वहां पे उसको व्हेन दे गेट द बैंक फंडिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट, दे फील हैप्पी, एंड एज अ प्रोफेशनल व्हेनेवर वी डू दोस काइंड ऑफ सर्विसेज, वी टेक आवर प्रोफेशनल सर्विसेज. लेकिन वहां पे एक अगेन, इवन दो क्लाइंट इज गेटिंग द लोन टू सेट अप देयर प्रोजेक्ट, बट अल्टीमेटली उसको वो लोन 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में रीपे करना है. बट नाउ सी द ब्यूटी ऑफ सब्सिडीज. सब्सिडीज ऐसी चीज होती है विच इज अ ग्रांट इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट, जहां पे आपको वो इंसेंटिव मिलने वाला है, एंड यू नीड नॉट टू पे बैक टू एनीवन. आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपने एग्जाम्पल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, गवर्नमेंट आपको अगर उस पर 20% कैपिटल सब्सिडी देती है, यू गेट 2 करोड़ रुपीज ऑफ सब्सिडी इंसेंटिव ऑन दैट, इन विच यू नीड नॉट टू रीपे. इट इज प्योरली योर प्रॉफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन वॉट एवर यू सेव फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो अगर यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को गाइड करते हैं प्रॉपरली हाउ दे कैन गेट these kind of subsidies, it can really add value to us. Or then being a professional, client would be really happy to share the fees also if we provide these kind of services. So I just wanted to tell, इस सेक्टर में अगर हमको पता है क्या इंसेंटिव सब्सिडीज मिलने वाले हैं, हम लोग क्लाइंट को गाइड करते हैं, तो वी कैन रियली एड वैल्यू टू द क्लाइंट एज वेल एज टू आवर प्रैक्टिस एरिया. Now, friends, coming to various government subsidies and incentives, central government, state government, as I mentioned, both the subsidies are available. कुछ टर्म्स है जो अपनी अगले 3-4 जो पॉलिसीज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सब्सिडीज में आएंगे, तो मैं जस्ट आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ सो दैट वी आर अवेयर. तो सब्सिडीज आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ सब्सिडीज: फ्रंट एंड सब्सिडीज, बैक एंड सब्सिडीज, क्रेडिट लिंक सब्सिडीज, नॉन क्रेडिट लिंक सब्सिडीज. I think with the wordings itself, it is clear. You all are प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो समझ ही गए होंगे सभी फ्रंट एंडेड सब्सिडी, बैक एंडेड. बट आई जस्ट स्लाइटली गिव डिटेल.
फ्रंट एंड सब्सिडी वो होती है जहां पे इंसेंटिव आपको प्रोजेक्ट लगने के, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल सब्सिडीज। आपने, आपका कोई क्लाइंट है, एमएसएमई क्लाइंट है, उसने एक यूनिट लगाया, लेट्स टेक एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर उसने एक यूनिट लगाया जहां पे उसने टोटल 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 10 करोड़ में से, अब मैं इसका थोड़ा सा ब्रेकअप कर देता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रंट एंड सब्सिडी एंड व्हाट इज बैक एंड सब्सिडी। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में लेट्स टेक एग्जांपल, उसको 20% कैपिटल सब्सिडी मिल रहा है विच इज 2 करोड़ का सब्सिडी। 3 करोड़ का प्रोमोटर का खुद का कंट्रीब्यूशन है, और 5 करोड़ का उसने बैंक से टर्म लोन लिया है। सो टोटल कॉम्पोजिशन इज 5 करोड़ बैंक लोन, 3 करोड़ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, 2 करोड़ सब्सिडी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, if it is a front end subsidy, in that case you will get that subsidy amount during the course of construction of that unit itself। तो आपको जो 10 करोड़ प्रोजेक्ट पे तो इन्वेस्ट करना ही है, उसमें से 2 करोड़ जो गवर्नमेंट ने देना है, दे विल गिव ड्यूरिंग इट कंस्ट्रक्शन पीरियड ओनली। सो इन दैट केस बैंक से आपको 5 करोड़ ही लेना है, आपकी पॉकेट से प्रोमोटर हैज टू इन्वेस्ट 3 करोड़ ओनली, एंड 2 करोड़ contribution as a subsidy they will get during the construction of the unit itself। But there are other kind of subsidies which are back end subsidies। सेम एग्जांपल, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5 करोड़ का बैंक लोन, 3 करोड़ का प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, 2 करोड़ का subsidy। But in back end subsidy amount, you are eligible for 2 crore rupees as a capital subsidy, but this subsidy you will get after a period of start of the unit होने के बाद में, 3 साल बाद में, 5 साल बाद में, या फिर over a period of 5 to 7 years you will get that subsidy। So here the bigger difference is, सेम प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपको 10 करोड़ प्रोजेक्ट लगाने के लिए खर्च करना है, 5 करोड़ आपने बैंक लोन लिया, लेकिन शुरू में प्रोजेक्ट बनाने के लिए 3 करोड़ आपका कंट्रीब्यूशन था, 2 करोड़ सब्सिडी आने वाला था, पर वो शुरू में नहीं आया। इन दैट केस दैट 2 करोड़ रुपीज ईदर यू हैव टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर पॉकेट इन स्टार्टिंग, और यू हैव टू टेक लोन फॉर दैट 2 करोड़ रुपीज इन द स्टार्टिंग, और जो सब्सिडी का पैसा है वो आपको आने वाले 3 साल 5 साल बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फंड्स का अरेंजमेंट कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्ट के अंदर आपको बैक एंड सब्सिडीज के अंदर सब्सिडी अमाउंट भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट इट एज अ रीइंबर्समेंट आफ्टर 3-5 years और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट वाज द डिफरेंस। क्रेडिट लिंक, नॉन क्रेडिट लिंक सब्सिडीज का मेजर डिफरेंस इज, क्रेडिट लिंक सब्सिडीज आर जहां पे यू विल गेट द सब्सिडी ओनली व्हेन यू हैव टेकन अ प्रॉपर बैंक टर्म लोन। अगर आपने, वो सब्सिडी की पॉलिसी की इंसेंटिव स्कीम में मेंशन रहता है, अगर बैंक लोन आपने लिया है तभी आपको सब्सिडी मिलेगा, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल। और देर आर सर्टेन इंसेंटिव स्कीम्स ऑल्सो, जहां पे आपने बैंक लोन नहीं भी लिया है तो भी आपको सब्सिडीज मिल जाती हैं, जो हम लोग एक जनरल पैरेलेंस में समझते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ द सब्सिडीज है, दे आर नॉट वेरी टेक्निकली और फाइनेंशियली, मींस दे आर नॉट इन गुड इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो व्हाट दे अंडरस्टैंड इज, अगर किसी बैंक ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लोन दिया है तो दे मस्ट हैव डन देयर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, और जब बैंक ने लोन दिया होगा तो उसने 4 बार वहां पे विजिट भी किया होगा, साइट पे भी गया होगा, देखा होगा कि जिस मशीनरी के लिए मैंने पैसा दिया उसी के लिए इन्वेस्ट हुआ है, मशीनरी परचेज हुआ होगा, इंस्टॉल हुआ होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ होगा। तो these departments, subsidy departments, these are government departments, they have an additional control, additional support from the banker, that project is being executed। And friends, let me tell you, हमारे लिए भी अच्छा है एज अ प्रोफेशनल, आज हमने अपने क्लाइंट को, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको एडवाइस किया है, उनको सब्सिडी के लिए पैसा दिलवाया है, एंड दे शुड यूज दैट मनी इन द राइट डायरेक्शन फॉर द राइट पर्पस। जिस चीज के लिए लिया उसी के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो अगर क्रेडिट लिंक सब्सिडीज होती हैं वो बेटर होती हैं। एंड लेट मी टेल यू, जो मेरा एक्सपीरियंस है इन लास्ट, आज से 20-25 साल पहले काफी सुनते थे कि सब्सिडीज का पैसा मिल जाता है, उसके बाद यूनिट्स बंद भी हो जाती हैं, एंड दे आर नॉन ट्रेसेबल काइंड ऑफ थिंग्स। बट इन लास्ट 15-20 years गवर्नमेंट को भी ये समझ में है, एंड दे हैव मेड मोस्ट ऑफ द सब्सिडीज क्रेडिट लिंक सब्सिडीज ही हैं आज के टाइम के अंदर। कुछ कुछ है अभी भी जहाँ पे नॉन क्रेडिट लिंक है ड्यू टू देयर requirements, but most of the subsidies nowadays are credit linked, and which is good for the professionals also। So these were couple of important things which I wanted to discuss in the start of the discussion। हम लोग शायद क्वेश्चन आंसर्स एक बार को लास्ट में ले लेते हैं, वंस वी गो थ्रू द प्रेजेंटेशन आई थिंक बेटर रहेगा। विश्वास जी, इज इट ओके? हाँ जी सचिन जी, हाँ, तो क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट हम में लोग लेते लास्ट में एक 5 मिनट 10 मिनट का वॉट एवर टाइम यू परमिट, सो हैं। हाँ दैट जी, नाउ फ्रेंड्स आप कमिंग टू,
कमिंग टू वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोग स्कीम्स डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट इज पीएम किसान संपदा योजना, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट. Second is National Agri Infra Fund, very interesting scheme. 3% interest subsidies in there. We will discuss in detail when we come to this. Then these two first two are from the agri or pharma or food processing sector. Third one is for pharmaceutical technology upgradation assistance scheme, which is again a very interesting scheme for pharma sector. And if time permits, we'll try to take national subsidy for cold storages. I've just given some other names also, but I think हम लोग इतना तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे once we go in detail. तो but these are again some of the subsidies just for आपको नाम पता रहे. तो apart from that स्टेट गवर्नमेंट है फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको सब्सिडी में आई जस्ट इट क्लिक टू माय माइंड, आई वांटेड टू शेयर विद यू. देयर आर सर्टेन सब्सिडीज जहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों स्कीम का एक ही प्रोजेक्ट पे बेनिफिट ले सकते हैं. इट इज लीगल, इट इज अलाउड. Let me tell you, in my practice of subsidies of last 15-16 years, we have done lot of projects जहाँ पे हम लोग ने उनको प्लानिंग करके एक ही क्लाइंट को 10 करोड़ का अगर उसने प्रोजेक्ट दिलाया है, we have gone up to 100% of the subsidy for that entire project also. इट इज लीगली अलाउड. जहां पे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 30-35% का सब्सिडी आ रहा है वो ले लिया, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की देयर आर सर्टेन स्कीम्स जहां पे आपको 60-65% का सब्सिडी का बेनिफिट मिल जाता है. तो अगर उसने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है तो वी हैव got 10 crore of the subsidy for that client, not in the initial stage but over a period of 5, 7, 10 years. So these kind of value addition we can do when you go through the schemes जहाँ पे clearly लिखा रहता है along with the central scheme you can take the benefit of state schemes also, and which is legally allowed also. So all these things, if we are aware, in some schemes they restrict कि इसमें आपको खाली स्टेट का ही मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन नॉट टेक, और सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट यू कैन नॉट टेक एनी स्टेट गवर्नमेंट. इट इज स्पेसिफिकली रिटन इन दोज पॉलिसीज. तो हम लोग ये डिस्कशन विल ट्राई टू कवर दीज 4 इंपॉर्टेंट सब्सिडीज, और उसके बाद में इफ टाइम परमिट्स विल ट्राई टू टेक बैलेंस. फ्रेंड्स बिफोर दैट, अच्छा हम लोग जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन दिस सब्सिडी प्रैक्टिस के लिए, फॉर विच वी ऑल आर हियर, advisory services to clients, explaining them the policies. Friends, nowadays we have done for a lot of large corporates also, MSMEs के साथ साथ में, या फिर nowadays MSMEs are also in a such a size जहाँ पे उनको अगर 100 करोड़ 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, they try to analyze before investing. आज we had advised to one listed company also where they wanted to invest 150 crores in a project, and they gave us the assignment of analyzing from subsidy point of view for the decision making. 6 states they had given us, from incentive point of view which state is most beneficial for them, and they professionally paid also for that services. So these kind of services also we can give to our clients and advisory before starting of actual execution of subsidy work. Then preparation of project report. कोई भी आप सब्सिडी स्कीम करेंगे वहां पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना ही है, सीए में डेटा लगेगा ही, and for all these things he would need a chartered accountant, and we are in the best position to serve our clients along with बैंक फंडिंग भी आप करवा रहे हो, उसमें आपको सीए में बनाना है, प्रोजेक्शंस बनाने हैं. तो these both things can go hand in hand when we serve to our clients. Filing of various application with the subsidy department. ईयरली क्लेम, सब्सिडी के आपको ईयरली क्लेम्स करने पड़ते हैं. फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दे सकता हूँ, सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट का है, वहां पे आपको सब्सिडी मिलती है, वो 7 या 10 साल के अंदर मिलती है. एवरी ईयर यू हैव टू फाइल क्लेम ऑफ द सब्सिडी. सपोज आपने 10 करोड़ का उसको इंसेंटिव मिल रहा है, इट वुड कम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. हर साल 1-1 करोड़ का सब्सिडी मिलेगा. हर साल आपको फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड पीएनएल यू हैव टू क्लेम द सब्सिडी अमाउंट. आपने अगर उसका ईसी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिलवाया स्टार्ट में, सैंक्शन लेटर, उसके बाद आपने क्लेम्स दिलवा रहे हैं, योर रिलेशनशिप बिकम सो लॉन्ग विद द क्लाइंट. 10 साल तक वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है. और ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हीं 10 सालों में इफ क्लाइंट इज गुड, 4-5 साल में वो एक सेकंड एक्सपेंशन लेके आ ही जाएगा, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आएगा. जैसे उसने एक्सपेंशन लिया, नया प्रोडक्ट लिया,
आपका रिलेशनशिप वहां से फिर से उसके साथ में 10 साल का स्टार्ट हो गया है। सो ट्राई टू सी इस सेक्टर के अंदर अगर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो कितना बेनिफिट है हमारे अपनी प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म उस क्लाइंट के साथ में बिल्ड हो जाता है। सो एंड वी आर डूइंग थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंशन फॉर आवर क्लाइंट्स, जहाँ पे आज से 12 12 15 15 साल से हमारे रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ में we are maintaining. So this is a good area of practice I wanted to say. Then filing of licensing with government department, providing various certificates. आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेते हैं, ईयरली क्लेम्स लेते हैं, उसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, आपने केपेक्स किया है नहीं किया है, कितना केपेक्स किया है। सो ऑल दीज सर्टिफिकेट्स दे नीड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ऑल दीज एरियाज ऑफ प्रैक्टिस which we can do for our clients in MSMEs or large corporations. Now, friends, coming to this PM Kisan Sampada Yojana creation expansion of food processing units. So, friends, एक और मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती हैं, आई कैन अगेन गिव द एग्जांपल फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इट इज फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करें, ब्रेड से लेके, स्टील से लेके, पेपर से लेके, कार्डबोर्ड, कार, ऑटोमोबाइल्स, वॉट एवर यू मैन्युफैक्चर, देयर इज अम्ब्रेला स्कीम। आपको उस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा फ्रॉम 30% टू 100% इंसेंटिव इज देयर इन महाराष्ट्र। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई अम्ब्रेला स्कीम नहीं है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना है। दे हैव स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स। जैसे उनका फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काफी फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सो दे हैव स्पेसिफिक स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। प्राइमरी सेकेंडरी उसमें सब कवर हो जाता है। विल डिस्कस पीएम किसान संपदा विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देन दे हैव सेपरेट स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दे हैव सेपरेट स्कीम फॉर केमिकल सेक्टर, दे हैव सेपरेट स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तो यहाँ पे जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का बात करते हैं, वी हैव टू बी स्लाइटली सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशन कर सकते हैं। बट आज का डिस्कशन तो 3 या 4 पॉलिसीज पे रहेगा, बट देर आर स्कीम्स फॉर वेरियस सेक्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। और स्टेट गवर्नमेंट में तो आपको हर स्टेट के अंदर एक अम्ब्रेला पॉलिसी मिल ही जाएगी। गुजरात के अंदर अपनी खुद की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, एमएसएमई के लिए पॉलिसी है। आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा हैज देयर ओन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान हैज देयर ओन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो यू विल फाइंड इन एवरी स्टेट अम्ब्रेला पॉलिसी, but central government it is slightly sector specific. So now we'll discuss this central government scheme, PM Kisan Sampada Yojana creation expansion of food processing unit. तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एलिजिबल प्रोडक्ट्स किस किस चीज पे ये सब्सिडी मिलती है। इफ योर एमएसएमई क्लाइंट इज मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स देन दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ किसान संपदा योजना। कितना बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबल प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। आपका कोई क्लाइंट एमएसएमई है, कोई भी फूड फ्रूट प्रोसेसिंग करता है, वेजिटेबल प्रोसेसिंग करता है, इसमें जैसे कटिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग यूनिट, आपका सब प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कवर हो जाता है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंदर अगर वो कुछ जूस मैन्युफैक्चर कर रहा है, फ्रूट से पल्प बना रहा है, सॉसेस बना रहा है, टमेटो केचप वगैरह बना रहा है, एवरीथिंग इज कवर्ड। मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग जो भी कर्ड, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, cheese, butter, paneer manufacturing, they all are covered. Meat, poultry, fish processing units, they are covered. Ready to eat, ready to cook breakfast cereals. आपकी जितने भी ब्रेकफास्ट, उपमा, पोहा आजकल रेडी टू कुक वगैरह में काफी सारे अवेलेबल रहते हैं। सो ऑल दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर कवर्ड। तो आई एम जस्ट गिविंग यू बास्केट, कितना ब्रॉड है। अगर आपके क्लाइंट्स आप देखते हैं, कोई भी इसमें नया इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, यू कैन add value by saying that you can get these kind of subsidies. And friend, एक और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लार्ज कॉर्पोरेट्स के पास में खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन हाउस टीम होती है, उनका सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उसके अलावा उनके पास में 4 5 6 लोगों की सीए की टीम इटसेल्फ होती है। तो दे डजंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस, और समटाइम दे माइट नीड आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका इन हाउस मैनेज कर लेता है। उनको पता रहता है कौन सी पॉलिसी आई हुई है, किस टाइम पे आई हुई है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, व्हाट इज एलिजिबल, व्हाट इज नॉन एलिजिबल। बट एमएसएमईज के पास में उतनी एक्सपर्टीज होती नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट एमएसएमई इज द सेक्टर जहां पे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर फोकस करते हैं, उनको ऐसी स्कीम्स के बारे में एडवाइस करते हैं, उनको बताते हैं और उनको दिलवाते हैं, तो दे कैन रिमेन अ लॉन्ग टर्म क्लाइंट फॉर अस। और इसके साथ में अपनी बाकी की सर्विसेज तो उनके साथ में चल रही है और चलती ही रहेंगी। तो दीज आर द एरियाज अगेन। ग्रेन पल्सेस प्रोसेसिंग, ऑयल सीड मिलिंग की जितनी भी यूनिट्स है, राइस मिलिंग, नेचुरल फूड फ्लेवर्स, कलर मैन्युफैक्चरर्स जो फूड कलर्स कलर्स वगैरह रहते हैं, ऑल आर कवर्ड इन दिस
PM Kisan Sampada Yojana creation expansion. Now, this is a central government scheme. Anywhere in India आपको इस सब्सिडी का बेनिफिट मिल जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द 35% कैपिटल सब्सिडी मिलती है इसको, बट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सम एरियाज एज एस्पिरेशनल एरियाज और हार्ड एरियाज जहां पे आज के टाइम पे पहुंचना मुश्किल है, लाइक नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो वहां पे ये सब्सिडी बिकम्स 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। नॉर्मल एरिया में उन्होंने 35% दिया है, बट इन दो सर्टेन एरियाज दे हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ दोज एरियाज। वहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट लगाता है आपका क्लाइंट, तो वहां पे उसको 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। दे हैव गिवन एडिशनल 15% ऑफ द बेनिफिट। इट इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी, इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए जो स्टार्ट में हम लोग ने टर्म पढ़ा था, बैंक लोन होना कंपलसरी है। अगर आपने बैंक लोन नहीं लिया तो पीएम किसान संपदा योजना की सब्सिडी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और बैंक के अंदर भी उन्होंने डिफाइन किया है, ऑल द कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक, सिडबी, नाबार्ड, इन्हीं से आपने लोन लिया तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर आपके सारे पीएसयू बैंक्स आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके एसबीआई से लेके यूनियन बैंक, जितनी भी बात करें, ऑल प्राइवेट बैंक्स आर ऑल्सो कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक्स। So if you are taking loan from these banks, recognized banks, then they will give the benefit of this subsidy. Again, important thing, it is a front-ended subsidy released in 2 installments. So जो हम लोग ने बैक एंड और फ्रंट एंड का बात किया, आपने जैसे ही प्रोजेक्ट लगाना स्टार्ट किया, 50% ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हुआ, तो आप जो भी एलिजिबल सब्सिडी है उसका 50% आप गवर्नमेंट से क्लेम कर लीजिए, और एज एंड व्हेन यू रीच नियर टू 90 और 100%, यू कैन क्लेम द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द सब्सिडी। सो आपका प्रोजेक्ट लगने से पहले ये सब्सिडी का पैसा आ जाता है। सो फ्रॉम कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू आपको हो सकता है 10-20% आपको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन के पास में जाके मिलता है, बट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन के 50% कंप्लीट होते ही यू कैन क्लेम दिस सब्सिडी। सो विच इज अ गुड, जो मैंने एग्जांपल दिया, 10 करोड़ में से अगर आपको 3.5 करोड़ का यहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है 35%, सो 50% ऑफ 3.5 करोड़ यू कैन टेक विद इन 50% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको स्टार्टिंग ही पैसा मिल जाएगा, तो उतना आपको अरेंज करने का जरूरत नहीं है फ्रॉम कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर द सम ऑफ द क्राइटेरियाज। नाउ यहाँ पे मैंने मेंशन किया सब्सिडीज 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और मैक्सिमम सब्सिडी इज 5 करोड़। तो अगर हम लोग इसका एक रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो 15 से 16 करोड़ का अगर आपका प्रोजेक्ट रहेगा, उस पर 35% के हिसाब से आपका 5 करोड़ रुपया बनता है, उतना आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो दैट इज द मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन टेक, बट इट डजेंट मीन दैट आपका प्रोजेक्ट 15 या 16 करोड़ का होगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इफ यू आर जो आपको यहाँ पे सेक्टर्स बताएं उसमें से है एमएसएमई है, और आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट सपोज 20 करोड़ का भी है, तो स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट, बट टू द कैप ऑफ 5 करोड़ रुपीज। आपको सब्सिडी का अमाउंट उन्होंने कैप कर दिया है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज। एंड फ्रेंड्स, देयर इज अ लोअर कैप ऑल्सो इसमें, जहां पे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ का रहेगा या उससे ऊपर रहेगा, तभी आपको पीएम किसान संपदा योजना में बेनिफिट मिलेगा। बिलो 3 करोड़ रुपीज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पीएम किसान संपदा योजना। And now this important thing is available on investment on building civil cost, plant and machinery. So here the important is लैंड कॉस्ट जो रहेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपने जो 15-16 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया, आपको सब्सिडी मिलेगा वो खाली बिल्डिंग सिविल कॉस्ट एंड प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट पे ही मिलेगा। So land cost is not covered, but again in Maharashtra, जो मैं अगेन बार बार आई एम टेलिंग, यहाँ की जो स्टेट सब्सिडी है वहां पे लैंड का इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर होता है, एंड यू गेट द सब्सिडी ऑन द लैंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की इंसेंटिव के अंदर। तो इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वहां पे आपको बिल्डिंग और सिविल कॉस्ट में मिलेगा। एक और इसमें स्लाइटली इंपॉर्टेंट थिंग है, SC/STs के लिए अगेन देयर इज एडिशनल, जैसे हम लोग ने डिफिकल्ट एरियाज में गवर्नमेंट 15% आपको एक्स्ट्रा दे रही है प्रोजेक्ट लगाते हो, सेम वे अगर आपका जो client है they are from the SC/ST category, then instead of 35% they will get the benefit of 50% of the subsidy project cost का। तो but कैप इज 5 करोड़ रुपीज। तो अगर हम लोग इसका उनके लिए रिवर्स कैलकुलेशन करें, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर कोई भी SC/ST लगाता है तो उनको उसमें पूरा 5 करोड़ का मिल जाएगा बेनिफिट, और वो 10 करोड़ का जनरल लगा रहा होता तो उसको उस प्रोजेक्ट में 3.5 करोड़ का सब्सिडी मिल रहा हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा सो आई विल ट्राई टू हाईलाइट ऑन दैट।
किसान संपदा योजना सब्सिडी है, वैसे तो इट इज फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years एंड इट इज कंटिन्यूइंग एवरी ईयर, वो रिन्यू हो जाती है। बट फॉर द एप्लीकेशन इट इज अ कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस, और एप्लीकेशन के लिए वो एक विंडो ओपन करते हैं ऑफ 2 months और 3 months। लास्ट विंडो वाज ओपन फ्रॉम February 1st से लेके, और आई थिंक 11th या 12th अप्रैल तक वो विंडो ओपन थी। तो एवरी ईयर दे ओपन दिस विंडो फॉर 2-2.5 months काइंड ऑफ थिंग। उसी पीरियड के अंदर आपको उस सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टर्म लोन जो आपका सैंक्शन होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए जो आप केपेक्स करने वाले हो, उसी 2 से ढाई महीने के पीरियड में जो उन्होंने विंडो ओपन किया है, उसी पीरियड के अंदर वो टर्म लोन सैंक्शन होना चाहिए। अगर आपने उनका जो एडवर्टीजमेंट आया सब्सिडी के लिए उससे पहले टर्म लोन सैंक्शन हो गया, तो फिर आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल नहीं होगा। या फिर जो उनका विंडो था, सपोज लास्ट विंडो वाज अप टू 11th of April, 11th of April के बाद में आपका सैंक्शन होता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई इन दिस किसान संपदा योजना। तो दैट इज स्लाइटली, दे हैव नॉट केप्ट इट ओपन फॉर द एंटायर ईयर, उन्होंने वो विंडो रखा हुआ है, बट दे ओपन दिस विंडो फॉर 2 to 3 times इन ईयर। तो इफेक्टिवली 7 से 8 महीने तक ये स्कीम ओपन रहती है। सो बट क्लाइंट हैज टू स्लाइटली, कोई कैपेक्स कर रहा है तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि जब ये विंडो ओपन होता है उस टाइम पे हम लोग सैंक्शन के लिए जाएंगे, दे हैव टू स्लाइटली वेट फॉर दिस। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें कंडीशन है, सैंक्शन होने के बाद में डिसबर्समेंट यू हैव टू टेक वंस द सब्सिडी इज ऑल्सो सैंक्शन टू यू। सो आपने 2 से ढाई महीने के पीरियड का जो विंडो ओपन था उसमें आपने टर्म लोन सैंक्शन करा लिया, उसके बाद में आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन, और उससे 1 या 1.5 महीने बाद में जब वो सब्सिडी का एप्लीक आपकी सैंक्शन आ जाता है, after that you have to take the disbursement and you have to start the work, so again you have to wait for some time। These are slightly, हम लोग कई बार बोलते नहीं कि ऐसे conditions को they may try to give some relaxation, but these are some shortcomings in this scheme, but we have to we should know these things। तो कुछ कुछ चीजें हैं, मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। जैसे हम लोग ने बिल्डिंग सिविल कॉस्ट में बोला, देर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर इनएलिजिबल, लाइक कंपाउंड वॉल, एडमिन बिल्डिंग, कैंटीन, लैंड कॉस्ट हो गया, इंटरनल रोड्स हो गया, सिक्योरिटी गार्ड कैबिन्स हो गया। दीज कॉस्ट आर नॉट एलिजिबल। तो खाली आपका जो प्रोडक्शन से रिलेटेड मेन प्रोडक्शन बिल्डिंग है उसी का सिविल कॉस्ट कवर होगा। आपकी रोड्स हो गया, वॉल्स हो गया, कंपाउंड वॉल्स हो गया, वो सब आपकी कवर्ड नहीं होगी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आपका ओल्ड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अगेन विल नॉट बी एलिजिबल, आपका प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट वी हैव डिस्कस्ड, SC/STs वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, सो मैंने वैसे तो ब्रॉडली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस सब्सिडी की कवर कर ली है, बट अगेन ईच एंड एवरी पॉलिसी नीड्स, हम लोग को 2-3 और कवर करनी है। आई ट्राई टू क्विकली गो टू द सेकंड पॉलिसी, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस CM फूड प्रोसेसिंग किसान संपदा योजना। सेकंड फ्रेंड्स, अगेन कमिंग टू सेंट्रल, अच्छा इसमें किसान संपदा में वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, along with this central government scheme you can take any state government subsidy benefit also। so again giving the example of Maharashtra, 35% आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का किसान संपदा में बेनिफिट मिल गया। 65% इफ यू आर एलिजिबल इन स्टेट गवर्नमेंट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी ऑल्सो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर नागपुर का एरिया है, वहां पे आपको 65-70% सब्सिडी मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट से। तो नागपुर में बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी का भी बेनिफिट लेती है, किसान संपदा भी लेती हैं। दोनों मिला के उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ का अगर उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया तो एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट दे टेक एज अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ऑल दोज थिंग्स वी कैन वर्क आउट फॉर आवर क्लाइंट। सो इंपॉर्टेंट थिंग वाज आप दोनों का इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। Now coming to this again very important scheme, central government scheme, National Agri Infra Fund scheme। Friends, again गेम चेंजिंग फॉर एग्री सेक्टर। मैं क्विकली बता देता हूँ किस किस चीजें के लिए आपको एलिजिबल है। अगर आपका कोई क्लाइंट कोल्ड स्टोरेज लगा रहा है, तो हियर कोल्ड स्टोरेज मींस उसको वहां पे एग्री इनपुट्स को स्टोरेज करने के लिए लगाना है। अगर कोई चॉकलेट्स को स्टोर करने के लिए लगाता है, दैट इज नॉट एग्री इनपुट। अगर किसी ने कोई फार्मर प्रोडक्ट स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगाया, दैट इज नॉट एलिजिबल। तो एग्री इनपुट्स को स्टोर करने के लिए अगर आपने, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, सॉसेज हो गया, केचप्स हो गया, वट एवर इट इज, दीज थिंग्स दे कैन स्टोर। तो
उसके लिए अगर कोल्ड स्टोरेज लगाया दैट इज एलिजिबल फॉर नेशनल एग्री इंफ्रा फंड स्कीम। एग्री वेयर हाउसेज, आपके वेयर हाउसेज होते हैं वो नर्सरी, टिश्यू कल्चर, सीड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, कोल्ड चेन, रेफर वैन्स, ये सब अगर एग्री से रिलेटेड अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है इन सब चीजों के अंदर तो दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एग्री इंफ्रा फंड स्कीम। अभी स्कीम क्या है मैं आपको ब्रॉडली बता देता हूँ। तो इट इज अ 3% इंटरेस्ट इंसेंटिव ऑन टर्म लोन अप टू ₹2 करोड़। 2 करोड़ तक के टर्म लोन के ऊपर 3% का बेनिफिट आपको एवरी ईयर मिलेगा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 years। बट अगेन हियर द थिंग इज, प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर भी रहेगा, सपोज 5 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो भी आपको दो, इट्स नॉट लाइक वंस यू क्रॉस 2 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा 3% इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन। यू कैन गेट द बेनिफिट बट यू विल गेट अप टू 2 करोड़ रुपीज ओनली। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका या टर्म लोन आपका 5 करोड़ का भी रहेगा, यू विल गेट बेनिफिट अप टू 2 करोड़ रुपीज। तो 3% इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। So friends, again a huge benefit, and again this scheme is specifically categorically says that you can take benefit of, this is a central government scheme, along with that you can take the benefit of other central government scheme or state government scheme। So बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे महाराष्ट्र में जो कोल्ड स्टोरेज वाले लगाते हैं एग्री इंफ्रा फंड के अंदर भी बेनिफिट लेते हैं, प्लस प्लस स्टेट की इंसेंटिव स्कीम्स में भी दे आर टेकिंग बेनिफिट। सो नाउ अगेन इट इज अ बैक एंडेड सब्सिडी। सब्सिडी का पैसा आपको एवरी ईयर आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर दीजिए, जो भी 9-10% का उसमें से 3% का आपको इंसेंटिव बन के एवरी ईयर इट विल कम टू योर अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में खुद करना पड़ेगा बट यू विल गेट बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एलिजिबल बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें एक अच्छा चीज है, आपने बैंक का डिसबर्समेंट ले लिया उसके बाद में भी आप सब्सिडी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे हम लोग ने पीएम किसान संपदा में देखा, वहां पे आपको पहले बैंक लोन सैंक्शन कराना पड़ेगा, फिर सब्सिडी सैंक्शन कराना पड़ेगा, उसके बाद में आप बेनिफिट ले सकते हो। बट हियर इन दिस केस यू कैन गो टू अप्लाई दिस सब्सिडी इवन इफ यू हैव टेकन द डिसबर्समेंट ऑल्सो। मैं क्विकली तो यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू कवर कपल ऑफ थिंग्स ऑल्सो। प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ में विच इज क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, आपका कोई फूड प्रोसेसिंग है जो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग की यूनिट्स कर सकता है, उसके साथ में दे हैव रिसेंटली एडेड द सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑल्सो। तो अगर कोई स्पाइसेस बना रहा है, कोई केचप बना रहा है, कोई बिस्किट्स कंफेक्शनिंग मैन्युफैक्चरिंग में है, दीज आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। दोज आर ऑल्सो नाउ इट इज कवर्ड इन दिस स्कीम। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़े से फिगर्स भी देता हूँ इस स्कीम के अंदर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ टारगेट ऑफ, इट वाज स्टार्टेड इन 2021, 2033 तक का ये स्कीम ऑपरेशनल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपीज ऑफ सब्सिडी टू बी डिसबर्स्ड इन दिस एग्री इंफ्रा फंड। एंड अप टू एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सैंक्शन द सब्सिडी ऑफ 47,000 करोड़ अंडर दिस स्कीम। उसमें से 29,000 करोड़ हैज बीन डिसबर्स्ड आल्सो टू द क्लाइंट एज ऑफ नाउ। अभी इसमें कैसा 7 years का पीरियड है। सो लास्ट डेट टू गेट द सैंक्शन अंडर दिस स्कीम, एग्री इंफ्रा फंड स्कीम, इज 31 मार्च 2026, क्योंकि उसके बाद में से आपको 7 साल में सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा विच इज एंडिंग ऑन 31 मार्च 2033। सो इट इज अप टू 2033। नाउ सी, इस एक साल के अंदर अभी तक उन्होंने 50,000, 47,000, 48,000 करोड़ की सैंक्शन की हैं। तो इन दिस 1 year 21 से लेके 25 तक उन्होंने 47,000 करोड़ की सैंक्शन की है सब्सिडीज। नाउ इन 1 year they have to sanction additional 53,000 करोड़ ऑफ द सब्सिडीज। सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस स्कीम लाइक एनीथिंग। आपके कोई भी क्लाइंट अगर इन सेक्टर्स के अंदर हैं, आप उनको एडवाइस कीजिए, आपको 3% इंटरेस्ट का सब्सिडी मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीजीटी एमएससी का जो कवर रहता है 2 करोड़ रुपीज तक का, उसके अंदर there is some premium which you have to pay, so there is a benefit of that premium on CGT MSC cover also under this scheme, agri infra fund scheme। तो आपको 3% interest benefit plus you need not to pay that premium also, so which is a very good scheme for the clients who are into primary processing, secondary food processing और cold storage, agri warehouses, nursery, tissue culture, ये सब आपकी एक्टिविटीज में कवर हो सकते हैं। You can just see अगर कोई client आपके इन सेक्टर्स में काम करते हो, they can really benefit। फ्रेंड्स क्विकली एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। अब हम लोग एक कवर करते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, जिसको वी से इट PTUAS, और अभी उन्होंने इसको रिवाइज कर दिया, इसके लिए अभी इसको RPTUS ये लोग बोलते हैं। तो विल सी क्या ये स्कीम है। Objective of this scheme is
फॉर द एग्जिस्टिंग फार्मा यूनिट्स, जो एग्जिस्टिंग फार्मा यूनिट्स हैं, आजकल आपको पता होगा फार्मा के स्टैंडर्ड्स काफी हाई रहते हैं, दे हैव टू मेंटेन देयर फैसिलिटी इन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड विच इज शेड्यूल एम, एक उनके अंदर रहता है, और एक WHO GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स रहते हैं। उनको मीट करने के लिए उनको बहुत सारे केपेक्स करने पड़ते हैं, क्लीन रूम के अंदर, उनके ETP प्लांट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर। तो द स्कीम इज बेसिकली, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ, if any of your client which is in pharma sector, they want to take the schedule M and WHO GMP standards के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट लेना, उसके लिए उनको केपेक्स करना है, तो दिस स्कीम इज फॉर एग्जिस्टिंग फार्मा यूनिट्स, इट इज नॉट फॉर न्यू यूनिट्स। अप टू 2 crore of subsidy you can get under this scheme if, तो एलिजिबल क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। फार्मा यूनिट्स किस किस चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, एंड किसके लिए इट इज एलिजिबल। तो यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने दिया हुआ है, जिन यूनिट्स का एवरेज टर्नओवर इन लास्ट 3 years इज लेस देन 500 crore रुपीज, ओनली दोज यूनिट्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस PTUS और RPTUS यूनिट इन इंडिया। उसके भी 3 स्लैब्स हैं, 20%, 15%, 10% का सब्सिडी कैलकुलेशन है, सो विल सी, उसका सेपरेट लिमिट है। प्रोजेक्ट एनीवेयर इन इंडिया, आपके इंडिया में कहीं पे भी प्रोजेक्ट करेगा, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। नॉन क्रेडिट लिंक सब्सिडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उन्होंने उसको बैंक लोन से लिंक नहीं किया है। अगर आपने, प्रमोटर ने खुद के कंट्रीब्यूशन से भी वो जो GMP स्टैंडर्ड्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ग्रीन रूम टेक्नोलॉजी और क्लीन रूम टेक्नोलॉजी के लिए, तो दे कैन गेट बेनिफिट इफ दे इन्वेस्टेड फ्रॉम देयर ओन फंड्स। बैक एंडेड सब्सिडी, सब्सिडी आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आती है, सो इनिशियली इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन बाय प्रमोटर, एंड वंस यू सबमिट दैट आई हैव डन दिस काइंड ऑफ केपेक्स, दे कैन गिव यू बेनिफिट। Now, friends, coming to this, here the maximum subsidy is up to 2 crore rupees per unit. Now, उसकी लिमिट्स कैसे हैं? अगर अगर किसी यूनिट का अगर किसी यूनिट कुछ शायद बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, एडमिन अगर म्यूट करेंगे आप बाकी सबको तो रियली गुड। Average turnover of unit in last 3 years is between 1 crore to rupees 50 crores, then your subsidy would be 20% of the investment. So एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 2020, 21, 21, 22, 22, 23, तो जो प्रीवियस 3 years है वो उन्होंने ये 3 साल कंसिडर किए। इन तीनों के अंदर मिला के अगर उनका एवरेज टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, सपोज 20-21 में उन्होंने 10 करोड़ का किया, 21-22 में 15 का किया, 22-23 के अंदर 20 करोड़ का टर्नओवर किया, तो एवरेज करके इट इज लेस देन 50 करोड़ रुपीज इन ऑल 3 years। तो योर सब्सिडी विल बी 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में करना है? यूटिलिटीज, HVAC, वाटर, स्टीम, क्लीन रूम फैसिलिटी, टेस्टिंग लैब्स, ATP, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट और कंसल्टेशन सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस। अगर ये सब में मिला के आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% ऑफ सब्सिडी अप टू 2 करोड़ रुपीज। अगर मैं इसका रिवर्स कैलकुलेशन करता हूं तो आपका कोई क्लाइंट है जिसका टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, अगर उसने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये पांचों चीजों में मिला के कहीं पे भी किया है टू मैच द WHO स्टैंडर्ड्स, देन 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 20% के हिसाब से 2 करोड़ रुपए आता है, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 2 करोड़ रुपीज। अगर उसने उन सब में 5 करोड़ का किया है, देन 20% of the 5 crore, which is 1 crore rupees, you will get the benefit of 1 crore rupees only, because the maximum cap is 2 crore rupees. Now, average turnover is 50 crore से 250 crore, then your incentive would be 15% of the capex what you are doing. So, same case में अगर आपके क्लाइंट का टर्नओवर 50 से 250 के बीच में होता, सेम उसने अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता, तो 10 करोड़ के ऊपर 15% के हिसाब से he would have got 1.5 crore rupees of subsidy. And if the client turnover would have been from 250 crore to 500 crore rupees, then capital subsidy under this PTUS would have been 10% of the capex, जो कि सेम एग्जांपल के अंदर 10 करोड़ का capex अगर आपने इन सब चीजों पे किया हुआ रहता, you would have got 1 crore rupees of the सब्सिडी। सो ये उन्होंने थोड़ा सा स्लैब दिया हुआ है, जिसका टर्नओवर कम है, थोड़ा सा छोटा MSME है, दे वुड गेट मोर बेनिफिट। investment made for upgradation after 1 January 2024 is eligible। इसके लिए 1 जनवरी के बाद में कि incentives investment eligible है।
मैंने एलिजिबल किस किस चीज में उनको करना है, यूटिलिटीज, एचवीएसी, वाटर, स्टीम, क्लीन रूम, टेस्टिंग लैब्स, ईटीपी, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, अगर फार्मा यूनिट कोई अपने प्रोडक्शन इक्विपमेंट भी अपग्रेड करती है टू मैच द डब्ल्यूएचओ जीएमपी स्टैंडर्ड्स, तो दीज इन्वेस्टमेंट्स आर एलिजिबल, कंसल्टेशन, सर्टिफिकेशन एक्सपेंस. So friends, with this, I think we have covered our important three subsidies. Two were from food processing, one is from pharma sector. Then there are some other subsidies. मैं quickly I can glance you through, but विश्वास जी हैं हमारे पास में, क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं. तो कैन वी स्पेंड 2-5 minutes या फिर वी शुड गो फॉर द क्वेश्चन आंसर? We can quickly wrap up, Sachin, in next 2-3 minutes if that's possible. तो मैं बस 2-3 मिनट के अंदर, वैसे तो हम लोग ने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया, बट हर सब्सिडी के लिए आपको एक एक सेशन काइंड ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गो इन डिटेल. तो एनएचडी की कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी है, जहाँ पे आपको 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर कोई कोल्ड स्टोरेज लगाता है उसके लिए सेपरेट इंसेंटिव स्कीम इज देयर. देन अगेन किसान संपदा की ही इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फॉर सेटिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, कोई फूड एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर्स लगाता है, मेगा फूड पार्क लगाता है, उसके लिए भी इंसेंटिव स्कीम्स है. अपेडा की स्कीम आर देयर. सेंट्रल गवर्नमेंट एट ऑफ सब्सिडी फॉर टेक्सटाइल सेक्टर की जो हम लोग बात कर रहे थे, एनडीडीबी का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट, कोई डेयरी के लिए एनिमल्स के अंदर उनकी शेड्स वगैरह बनाने में, देन प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर लगाता है तो देर आर सेपरेट स्कीम्स फॉर दीज. पीएलआई आई थिंक सेपरेट है, सो आई थिंक आज के में तो कवर नहीं हो पाएगा. मैं कुछ एरियाज ऑफ बैंक फंडिंग, आई थिंक वी ऑलमोस्ट सीजीटी एमएससी का मैंने वैसे कवर कर ही लिया, 5 करोड़ से 10 करोड़ का कर लिया है, लिमिट कर दिया है. सो यू नो वी कैन ऐड वैल्यू. स्टैंड अप स्कीम्स देयर, बैंक फंडिंग. तो फ्रेंड्स कुछ कुछ एरियाज और हैं सब्सिडीज का काम करते करते, जैसे एलईआई रजिस्ट्रेशन वी कैन अप्लाई नाउ डिज, इट इज मैंडेटरी. फ्रेंड्स ये स्लाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 मिनट इस पे स्पेंड कर लेता हूँ. तो व्हेन यू प्रोवाइड सब्सिडी स्कीम्स देयर आर सर्टेन अदर सर्विसेज व्हिच वी कैन प्रोवाइड अलोंग विद दैट. पीसीबी कंसेंट रजिस्ट्रेशन, सो यहाँ पे एमपीसीबी मैंने लिखा है, विच इज महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. हर स्टेट के अंदर, गुजरात में जेपीसीबी रहेगा, हरियाणा में एचपीसीबी रहेगा. तो whenever you put up a project, you need to take the consent from the pollution control board. तो इसका भी एप्लीकेशन बहुत इजी रहता है. बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. along with the subsidy we can provide these kind of trademark registration, factory license. again let me tell you, इसमें बहुत टेक्निकल नहीं होता है. we chartered we have done for our clients factory license registration, ISO, startup, udyam. So all these kind of services we can provide to the client along with when we are advising him on subsidies. So these areas again we can provide. ये सब तो मैं नहीं कवर करूंगा, जैन पोर्टल वगैरह बहुत लंबा हो जाएगा. वैसे मैंने प्रेजेंटेशन में है पुट अप, अगर किसी को बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए दे वांट टू सी. और एक इंपॉर्टेंट खाली लास्ट आई विल कम ऑन दिस. तो वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप, यहाँ पे मैंने वैसे उसका लिंक भी दिया है और स्कैनर भी है. तो इफ समवन वांट टू स्कैन इट, दिस इज अ ग्रुप. नो डिस्टरबेंस, वन साइडेड कम्युनिकेशन है. कोई भी सब्सिडी इंसेंटिव स्कीम्स के ऊपर नई स्कीम्स आती है एमएसएमईज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू अपडेट ऑन दिस ग्रुप. सो इफ समवन वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, और उसके ऊपर रेगुलर आपको इंसेंटिव सब्सिडीज के बारे में अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं. तो that was from my side. Thanks a lot for the patient hearing. I think थोड़ा सा time shortage था, but I tried to cover maximum जो important चीजें थी that we have covered in this given time of 1 hour 2 minutes. Thanks a lot to everyone. Over to Vishal ji. Yep. Can I ask a Thank you. question? If you Thank you, don't mind. Sachin ji. Thank you, Sachin ji. I guess it was very helpful session. I guess जिसको प्रैक्टिस करनी है या खुद का बिजनेस करना है इन दीज एरियाज जहाँ पर सब्सिडीज मिल रही हैं, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड ऑल्सो टू सी द गवर्नमेंट्स विजन टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट. I guess it was an all in all very helpful session. We'll quickly take up some questions now. Yes. What we have in chatbot, right? So प्रदीप कुमार जी का क्वेश्चन है कि डेफिनेशन पर है कि बोथ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की टू बी एलिजिबल एज एमएसएमई. Yes, so it is मैं एक बार वापस से आ जाता हूँ. वैसे it is both to be eligible for MSME. You have to, so it is end, मैंने ब्रैकेट में end लिखा भी है. So
you have to cover both things to be eligible as a MSME. प्रदीप कुमार जी का ही एक और क्वेश्चन है कि पीएम किसान संपदा योजना को अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? So again there is a dedicated website, MOFPI का एक वेबसाइट है, वहां से यू कैन गो. इट इज ऑनलाइन प्रोसेस, बट आई वुड से जो मैंने देखा है क्लाइंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है एमएसएमई के लिए भी. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे नॉर्मली कम टू अस क्योंकि उनको उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, सो वी कैन हेल्प द क्लाइंट एंड इट इज स्लाइटली अ डिटेल्ड ऑनलाइन प्रोसेस आल्सो. तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन हेल्प द क्लाइंट, बट देयर इज अ डेडिकेटेड MOFPI का वेबसाइट है. इफ नीडेड कुछ ग्रुप वगैरह रहेगा उसमें मैं उसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो दे कैन अप्लाई फ्रॉम दैट लिंक. थैंक यू. अंकुर सेठिया जी का क्वेश्चन है कि ये सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव टू आवर क्लाइंट्स हु आर इनटू प्रैक्टिसेस, इनके बारे में हम और कैसे सीख सकते हैं और कहाँ से सीख सकते हैं? सर आई थिंक मैं बोलूंगा सबसे पहले कोई भी एक प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट का पकड़ लीजिए. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सपर्ट इन दैट. और जब आप काम लेते हैं, देखिए लेक्चर्स तो बहुत सारे होते रहेंगे, ये दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स. आज मैंने भी आपको बताया है, आई हैव ट्राइड टू गिव मैक्सिमम, बट जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको शायद समझ में आया होगा. बट ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है, रेफरेंस पॉइंट्स है. एक बार आपने कुछ काम स्टार्ट किया, कोई क्लाइंट है उसको एडवाइस करना स्टार्ट किया, यू विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, उनकी पॉलिसीज रीड करेंगे. जैसे ही आप रीड करते एक दो पॉलिसीज पे आपने काम किया, यू स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन. और वैसे मैंने लास्ट के अंदर एक लिंक शेयर कर दिया था, वहां पे हम लोग इंसेंटिव सब्सिडीज के बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं, नई पॉलिसीज आती है, वी ट्राई टू शेयर. सो यू कैन ट्राई टू ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो. वहां से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम्स आती है. मैंने भी वैसे मेरा प्रैक्टिस वैसे स्टार्ट किया था. फर्स्ट क्लाइंट था जिसको लोन सिंडिकेशन का काम कर रहे थे हम लोग ने. फूड प्रोसेसिंग का क्लाइंट था जिसको लोन का काम किया था एंड ही वांटेड सब्सिडीज. उस टाइम तक सब्सिडी का एस भी नहीं पता था, बट समहाउ बोलते हैं ना कि जब काम आता है तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिशनर्स नाम ही बोल पाते हैं. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन 2011. और विद गॉड्स ग्रेस डॉक्यूमेंट पढ़े, चार लोगों से पूछा. जैसे आज मैं प्रैक्टिस में हूँ, वैसे ही उस टाइम पे जो एक्सपर्ट्स थे उनसे थोड़ा सा पूछ के, और वी वर्क इन दैट एरिया. That is how we can work on this. Okay, we'll take the last two questions. इफ यू डोंट माइंड, आई एम अंकुर सेठिया. मैं एक आपसे, जैसे आपने पॉइंट पुट किया, उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अधूरा ज्ञान मुझे लगता है क्लाइंट को मिसगाइड कर सकता है इन दिस केस. और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की अलग अलग पॉलिसी है, तो फुल एडवांटेज के लिए वी शुड हैव अ मोर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो दैट इज माय पॉइंट कि ओवरऑल कवरेज कैसे की जाए सो दैट मिसगाइड नहीं हो क्लाइंट इस केस में. सर उसके लिए आपको स्टार्ट में पॉलिसी पूरा, जैसे अभी पीएम किसान संपदा योजना है, इट इज अवेलेबल ऑन द वेरी मच पब्लिक डॉक्यूमेंट है. आपको पूरा पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो सब पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं. यू हैव टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, एक बार हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. ऑन दैट बेसिस वी कैन एडवाइज, या फिर आई एम जस्ट गिविंग यू इन इनिशियल स्टेजेस वी कैन कोलैबोरेट आल्सो. लाइक जो लोग पहले से काम करें उनके साथ में मिलके वी कैन वर्क अपॉन ऑन कपल ऑफ पॉलिसीज, एंड देन वंस वी डू वन और टू प्रोजेक्ट्स टुगेदर, देन वी कैन इंडिविजुअली आल्सो हैंडल. So that is how we all work in our professional with our professional colleagues and friends. अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच. ओके सचिन जी, सुनील गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है कि क्या सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई सब्सिडी स्कीम अवेलेबल है? सर एज फार एज आई रिमेम्बर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ऐसी कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की, जैसे मैंने बताया, अम्ब्रेला स्कीम्स होती है. महाराष्ट्र में आप कहीं पे भी लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उनका डेफिनेशन एक ही है. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग यू विल गेट द सब्सिडी अंडर एमएसएमई. और एरिया वाइज उन्होंने स्लैब्स अलग अलग किया हुआ है, तो इट डिपेंड्स ऑन कौन से स्टेट में है. आई डोंट नो आपका स्टेट कौन सा रहेगा आपके क्लाइंट के लिए, पर यू कैन चेक द लोकल स्कीम्स. नॉर्मली सब स्टेट्स के अंदर एमएसएमई के लिए अम्ब्रेला पॉलिसी होती है, हर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए दे प्रोवाइड. सो सैनिटरी के लिए भी फॉर श्योर रहेगा ही, प्रोवाइडेड इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. क्वेश्चन. Yeah, you can unmute yourself and ask a last I am question. also confused. Sir, bank are asking 2 years vintage for sanctioning the term loan working capital. Without that, they are not ready to sanction the term loan working capital for MSME also. So, what we will do? सर थोड़ा सा ये आई थिंक ये क्वेश्चन एक तो
टर्म लोन या लोन से रिलेटेड है, बट सिंस ठीक है प्लेटफॉर्म पे आपने रेज किया है तो आई ट्राई टू आंसर। क्या होता है, विंटेज प्रोमोटर का कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, बिकॉज बैंक ऑल्सो डजंट वांट टू टेक अननेसेसरी रिस्क। आज उन्होंने लोन दे दिया, उसके बाद में वो डिफॉल्ट होता है, बैड होता है, इट इज ऑन द रेपुटेशन ऑफ द बैंक ऑल्सो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो दे जस्ट वांट टू। लेकिन आप अगर नेशनलाइज बैंक्स में जाएंगे, वी हैव सीन, मैंने तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं, इवन दो विदाउट एक्सपीरियंस ऑल्सो दे गिव द टर्म लोन टू द न्यू क्लाइंट्स ऑल्सो। विंटेज का जरूरत है। प्राइवेट बैंक्स नॉर्मली 2 या 3 साल की बैलेंस शीट्स मांगती हैं, पर इन नेशनलाइज बैंक्स दे गिव टू द न्यू सेटअप ऑल्सो, प्रोवाइडेड प्रोमोटर के पास में या तो उसने कहीं पे जॉब किया हुआ है पास्ट का, वहां से एक्सपीरियंस रहे, या फिर प्रोमोटर के पास में कोई पार्टनर है उनका, उसके पास में एक्सपीरियंस है, स्टिल दे गिव। सो यू कैन ट्राई विद सम नेशनलाइज्ड बैंक्स जहां पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। Same thing is with National Bank also. क्योंकि I am doing the loan syndication work in last 20 years. सर आई थिंक वो तो फिर आपको लोकल लेवल पे ही यू नो ट्राई टू कन्विंस, अगर आपका तो प्रोजेक्ट अच्छा है अगर ये तो। ऐसा नहीं होगा तो फिर सब्सिडी मिलेगी नहीं आपको। अगर लोन सैंक्शन नहीं होगा तो सब्सिडी दैट नहीं डिपेंड्स, मिलेगी। दैट डिपेंड्स अगर आपका सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड है या नॉन क्रेडिट लिंक्ड है। अगर क्रेडिट लिंक रहेगा तो नहीं मिलेगा, बट इफ इट इज नॉन क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जैसे हम लोग ने बात किया आरपीटीयूएस का फार्मा सेक्टर के लिए, तो इट इज नॉन क्रेडिट लिंक, वहां पे आप ले सकते हैं विदाउट लोन। I guess in the interest of time, we should move forward. Thank you, Sachin ji. It was a very helpful session. We would like to present you a certificate as part of the speaker for this session. It was very helpful. Sir, it's my pleasure, my honor, and thanks to all for the patient listening. I think audience are amazing, super. सब लोगों ने बहुत ही शिद्दत से सुना। Thanks a lot. सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? I guess we can move forward with the session. You can wait till the end if the time permits. Right. So, in the interest of time, I'd like to before moving on the session, would like to invite Abhishek Jain ji. या फिर I have a slight suggestion. अगर किसी को क्वेश्चन है तो my number was there in presentation, या फिर जो स्कैन किया रहेगा, you can drop me on my personal also. I'll try to answer अगर किसी का कोई क्वेश्चन unanswered रह जाता है तो I'm always available on my mobile number, or you can note my mobile number also, 999206 88 003। ये मोबाइल नंबर पे आप मेरे को क्वेश्चंस अगर आपका कुछ रहेगा तो यू कैन सेंड मी क्वेश्चन ऑन दिस। आई ट्राई टू व्हाट्सएप कीजिए, आई ट्राई टू रिप्लाई दैट। थैंक यू। Thank you. I would like to now invite Abhishek Jain ji, who is the president for FIA, and he is an highly knowledgeable and dynamic leader, a very seasoned public speaker on income tax and other matters. He actively shares his expertise across various platforms, consistently contributing to the professional development of individuals and various communities. He is deeply engaged both socially and professionally, and is always at the forefront of initiatives. आप लोग उनको various platforms पर देख सकते हैं, empowering professionals, students, and fostering a culture of continuous learning. So, Abhishek Jain ji, your words of wisdom, please. Thank you. Thanks a lot, Vishwas bhai, for your great moderation. It's a really a great thing for any session. Thanks a lot, Adibya, Uttam bhai, for doing a great work before the session. Thank you, Sonu ji, our again moderator of the session. Mangal sir. And thanks a lot, special thanks to Sachin bhai, who have accepted our request to come here and enlighten the members. सचिन भाई हमेशा अवेलेबल रहे और उन्होंने जो डेलिबरेट किया, रियली थैंकफुल टू हिम. माय स्पेशल रिक्वेस्ट वाज टू सचिन भाई वाज दैट कि वो सब्सिडीज पे बोले, और नंबर ऑफ क्वेरीज वी हैव रिसीव्ड and we can see the queries asked by the members as well, even though because of the constraint of the time limit हम उनको ले नहीं पाए, but still no worry. नंबर सचिन जी के हम शेयर करेंगे आपको, और आपकी हर एक की मेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, those who have joined, we will send PPT across to you. तो आप बेफिक्र रहिए, और थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स दोज हु हैव जॉइंड हियर. और फिया हमेशा नए लेटेस्ट टॉपिक लेके आता रहा है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप ये सेशन भी यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, और फिया का ये सेशन अवेलेबल रहेगा
यूट्यूब पे एक दिन के अंदर। तो आप अगर किसी का मिस हुआ है तो आप सुन सकते हैं। थैंक्स टू अंकुर भाई, अंकुर सेठिया भाई, बसंत मेहता जी, दोज आई कैन रिकॉग्नाइज दोज हु हैव joined. Thank you from my side, Vishwas bhai. Over to you. थैंक यू अभिषेक जी। सो मूविंग ऑन टू द सेशन, मैं अपने को मॉडरेटर सी ए सोनू गुप्ता जी को इनवाइट करना चाहूँगा। शी इज़ ऑल्सो एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, and I'll pass on the baton to her for the onward session. I'll take your leave. Thank Okay. you. Thank you, Vishwas Jindal. So my name is Sonu Gupta. I am a qualified CA with holding the COP since last year. So my firm name is Gupta Sonu and Associates. So with this session is held by FIFA. So now let's come to the another session that is on Ind AS. So yes, of course, none other than CA Mangal Singh. So he is a distinguished chartered accountant and one of the designated partner of the reputed firm with this strong professional presence since 2015. He holds the prestige qualifications, including the fellow chartered accountant, certificate in accounting and the quality information system auditors from the ICI, and the bachelor degree in commerce. So he will give the session on Ind AS. So it is my honor. I'm over to you, CA Mangal Singh. Thank you Sonam ji so much for warm welcome. जैसा कि हमें पता है सर, अभी सचिन सर ने हमारे समक्ष ग्रांट्स के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स की, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही एक वास्ट प्लेटफॉर्म है। हम इस फील्ड पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। राइट नाउ इन यूपी स्टेट, in as per the concept of UP Invest, we are also doing some of the work for UP Invest, sir. Huge opportunities are there for chartered accountants, sir. If we will do in proper way, na, huge opportunity. We cannot tell in the amount, sir. बहुत अच्छा opportunity है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस हमें सही तरीके से सही गाइडेंस से चलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सचिन सर ने हमें सारी चीजों को एलोबरेटिव वे में हमें इन्फॉर्म किया है सर, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। और हम यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी जितने भी यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फर्टिलिटी में जुड़े हैं, उस वे में हम काम करेंगे सर। जैसा कि सर हमें पता है, जो भी ग्रांट्स और सब्सिडीज हमें मिल रही हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी होती है। जिस कंपनी में या जिस इंडस्ट्री में इंड एस एप्लीकेबल है, उसे एज पर इंड एस 20 के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें 20 के हिसाब से करनी पड़ेगी। सम ऑफ द पैरामीटर्स, कुछ कार्विंग्स कुछ कार्वआउट्स हैं दोनों में, वो हम एक एक वन बाई वन देखते हुए चलेंगे। मैं आपके समझ में अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। शेयरिंग एक बार मैडम ऑन करा दीजिए सोनू जी प्लीज। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes. Yes, sir. It's a visit. सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बेसिकली ग्रांट्स, सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक सब एक दूसरे के सिनोनिम्स प्रावची वर्ड हैं सर। इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इन आवर प्रेजेंटेशंस। फर्स्टली सर, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसमें सर कुछ अप्रोच होती है, कहीं कहीं कैपिटल अप्रोच होती हैं ग्रांट्स की, कहीं कहीं इनकम अप्रोच होती हैं। उस बेसिस पे हमें देख के चलना है। प्लस रिकॉग्निशन कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेकंड, सम ऑफ द केसेस में कभी कभी सर क्या होता है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स भी मिलती है। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स का कैसे रिकॉग्निशन होगा एज पर इंड एस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। व्हाट आर द प्रेजेंटेशन फॉर ग्रांट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट्स। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमें ग्रांट मिलती है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन फॉर ग्रांट टू रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी आपने पे कर रहे हैं, सैलरी पेड होते ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट आती है सैलरी पे करने के लिए। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम क्या उसी एक्सपेंस हेड से लेस करेंगे या इनकम दिखाएंगे, या दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। हम वन बाई वन उस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर प्रमोटर द्वारा कोई ग्रांट्स कंट्रीब्यूशन हो रही है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। कभी कभी क्या होता है सर, सम ऑफ द टर्म एंड कंडीशंस कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट कहती है कि जो हमने आपको ग्रांट दिया था इस ईयर में, आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर ली। राइट नाउ आपकी जो कंपनी की जो पोजीशन है, इट इज इन अ बेटर वे, काइंडली उसकी
ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि ग्रांट हमें रिफंड करना पड़ता है सर। तो रिफंड करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमें पता है इंड AS 20 हमारा गवर्न करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस। Government grants are assistance by the government in the form of transfer of resource to an entity in the return of past as well as future in compliance with a certain condition relating to operating activities of entity। सर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाली क्या है, पास्ट की कुछ ऐसी रिटर्न्स की, जैसे कि आपको कोई टारगेट दे दिया है गवर्नमेंट ने, सपोज यूपी में आपको इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। वैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसा हमें पता है नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप हो रही है तो गवर्नमेंट ने आपको टारगेट दे दिया, यूपी गवर्नमेंट ने, एज पर द यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। दो पॉलिसी है 2017 और 2020। 2017 कहती है कि अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, ये प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन ये अचीव कर लिया, या इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपने अचीव कर ली, तो हम आपको ये परसेंटेज आपका ग्रांट देंगे। और फ्यूचर्स बेसिस पे भी ग्रांट होते हैं। अगर फ्यूचर में फ्यूचर पैरामीटर को सेटअप करते हुए अगर ये पैरामीटर आप फुलफिल करते हैं, अगर आपका ये प्रोडक्शन लेवल होगा, जो भी आपका एक्सपोर्ट्स है, ये पैरामीटर हम फुलफिल करेंगे, तो उस हिसाब से हम ग्रांट आपके सुनिश्चित करेंगे। वो सबसे पहले हमें सर ये समझने वाली है कि दो तरह की ग्रांट हो सकती है बेसिकली एज पर द इंड AS। इंड AS बेसिकली क्या एम्फेसिस करता है सर? इंड AS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है? इंड AS बात करता है ज्यादातर जो उसकी अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म के रूप में होती है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मींस इज ए अकाउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और सेकंड फेयर मार्केट वैल्यू। टू पैरामीटर्स पे हमारा इंड AS टिका हुआ है। फर्स्ट वन इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इंड AS, एंड फेयर मार्केट वैल्यू। जो इंड AS का रिकॉग्निशन का होता है, सभी इंड AS अगर आप पढ़ेंगे तो ही पैरामीटर्स पे इंफेसिस ज्यादातर तौर पे रहता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड फेयर मार्केट वैल्यू। अगर हमारी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सर व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू, हाउ वी विल प्रेजेंट द फेयर मार्केट वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हमारी इंड AS की काफी हद तक क्लियरिटी आ जाएगी। अगर हम देखें तो प्रेजेंटेशंस कैसे कर सकते हैं ग्रांट की। सपोज दैट इफ रिलेटेड टू एसेट्स, अगर किसी एसेट्स के रिलेटेड में कोई ग्रांट आपको मिली है या किसी कंपनी को मिली है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अदर प्रेजेंट इन बैलेंस शीट बाय सेटिंग अप एज एन डेफर्ड इनकम हम शो करेंगे। और जिस प्रकार से डेफर्ड इनकम इसको ट्रीट करेंगे, या उसका एक ऑप्शन है जो भी कैरिंग अमाउंट है एट द टाइम ऑफ परचेज, वट एवर अमाउंट आज कैरिंग अमाउंट कहने का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ परचेज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन की जो इंटीग्रेंट है, जो क्वालिफाइंग एसेट्स, जो भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, चाहे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा हो, 10 लग रहा हो, चाहे आपका इंड AS लग रहा हो, तो उसमें जो भी क्वालिफाइंग एसेट्स की परिभाषा के अंतर्गत जितने भी कॉस्ट इंटीग्रेंट्स हैं, सारे के सारे पीपी जो क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं, उसमें टैक्स के इंटीग्रेंट्स भी हो सकते हैं, इंस्टॉलेशंस के भी हो सकते हैं, उसमें अपने बोरिंग कॉस्ट के भी इंटीग्रेंट्स हो सकते हैं, उसमें हमारे एक्सचेंज डिफरेंस के भी हो सकते हैं, कॉस्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो सारे कॉस्ट को लेते हुए उसमें से जो ग्रांट की वैल्यू है वी कैन रिड्यूस दैट वन एंड बैलेंस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक तो ये ट्रीटमेंट है। दूसरा हमारा ट्रीटमेंट है इफ रिलेटेड टू इनकम है, इफ दैट इज रिलेटेड टू इनकम देन क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला, प्रेजेंटेड एज एन पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आइदर सेपरेटली अंडर द अदर इनकम, अल्टरनेटिवली डिडक्ट फ्रॉम एक्सपेंस। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि रिकरिंग बेसिस पे अगर कोई या डे टू डे रनिंग पर्पस के लिए कोई ग्रांट हमें मिल रही है या किसी कंपनी को मिल रही है, सर्वप्रथम उसका दो ट्रीटमेंट है। या तो जैसे सैलरी के लिए मिला, सैलरी सपोज दैट मार्च मंथ की सैलरी पे करे, तो मार्च मंथ की सैलरी के एक्सपेंस से हेड में वो आप लेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रिकॉर्ड एज एन इनकम। दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैसे हम रिकॉग्निशन करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स। अगर एसेट्स है तो रिकॉग्निशन इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड मैचिंग विद द डेप्रिसिएशन ऑन दोस एसेट्स, अल्टरनेटिवली डिडक्ट द ग्रांट्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूस वैल्यू। डेप्रिसिएशन हम रिड्यूस वैल्यू पे चार्ज करेंगे। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स के केस में वी हैव टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू एज एन फेयर वैल्यू। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इंड AS कहता है। लेकिन हमारा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाइएगा मैडम सर, तो वहां पे क्लियर लिखा है नॉमिनल वैल्यू। एट नॉमिनल वैल्यू वी हैव टू बी रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट हमारा जो इंड AS ज्यादा एम्फेसिस करता है फेयर वैल्यू पे। अल्टरनेटिव एंटिटी में मेजर्स दिस ग्रांट एज ए नॉमिनल वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू हम ascertainable है तो we will have to be recognized in a fair value, otherwise we will go for nominal value. Grant related to income we have to be recognized in a profit and loss account which specific
expense are incurred, grant related to past experience as well as for any losses, for giving the immediate financial supports to the further support, then we have to recognize in our profit and loss account. इसका मैं एग्जांपल के तौर पे भी मैं एलोबरेट करूंगा इसका. नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे. मॉनेटरी ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स. कभी कभी क्या होता है सर, ग्रांट्स दो तरह के होते हैं. कभी कभी डेप्रिसिएबल एसेट्स पे भी ग्रांट मिलती है जो कि हमारा पीपीई का पार्ट होते हैं. अदर देन डेप्रिसिएबल एसेट्स पे भी हमें ग्रांट्स मिलती हैं. मे बी अकाउंटेड डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इंड एस स्पेशली प्रोवाइड रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रांट टू द शेयर होल्डर फंड्स. बेसिकली क्या होता है, इंड एस के हिसाब से जो हमें ग्रांट्स अगर नॉन डेप्रिसिएबल मिल रही है तो प्रोहिबिट करता है शेयर होल्डर फंड से हमें उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है. लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IGAAP, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, that amount we have to be credited to capital reserve account. Non-monetary grants at a concessional rate accounted as a fair value or nominal value. There is one example. Generally क्या होता है कस्टम में, EPGC स्कीम्स आर गवर्नमेंट की चलती है. तो उसमें क्या होता है सर मैडम, इंपोर्ट ड्यूटी वेव की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो उसमें हम सपोज दैट जो कंडीशंस फुलफिल है 6 ईयर तक की EPG हम स्कीम को अगर फॉलो करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू हमें देती है कि आपकी ये जो EPG है हम इस चीज को माफ करते हैं. जो भी स्कीम के तहत जो भी आपकी स्क्रिप्ट की बॉन्ड है या जो भी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं माफ करेंगे. ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर में एज एन इनकम रिकॉग्नाइज हम करके चलेंगे, डेफर्ड करते हुए चलेंगे ओवर द 7 ईयर. अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 12 अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स. बेसिकली ग्रांट्स AS 12 explain how to account the government grant. It is a basic duty for any government to develop the industry and economy. जैसा सर सचिन सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में कवर किया था, ग्रांट्स स्टेट की भी होती है एज वेल एज सेंट्रल की भी होती है, गवर्नमेंट की भी होती है. तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक स्टेट में, यूपी, महाराष्ट्र, सभी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को इंडस्ट्री लगाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और जो भी बैकवर्ड एरिया है उनके इंप्रूवमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए ग्रांट देती है इंडस्ट्री बेस पे. तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें ग्रांट मिलती है. ग्रांट एसेट्स वाइज भी हो सकती है, नॉन एसेट्स वाइज भी हो सकती है. उसके ट्रीटमेंट को हम एज एन पढ़ेंगे. टू help to discourage this duty, the government undertake professional activity, provides the incentive and grants to the businesses. The grants received from the government in various forms such as subsidies, duty drawbacks, amongst others. AS 12 deal with the grants given by the government but not covers the accounting of grants which reflect to the price change, assistance by the governments other than grants like tax exemptions, participation of the governments in गवर्नमेंट ओनरशिप. सपोज दैट कभी कभी क्या होता है सर, ग्रांट्स, सारी तरह की ग्रांट्स में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे देखने को वो लगेंगी ग्रांट है बट वो बेसिकली प्राइस चेंजेस के इफेक्ट का के लिए कोई पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की, कोई एक कस्टम्स की पॉलिसी आती है. जैसा कि अभी CVD के कंटेक्स्ट में हमारा कोई रिवाइज टैरिफ आ गया, उस केस में हम अगर गवर्नमेंट ने वो प्राइस हमारा रिड्यूस कर रहे हैं तो एज एन ग्रांट उसको ट्रीट नहीं करेंगे. वी कैन नॉट ट्रीट एज एन ग्रांट. अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंट आती है, जैसे कि टैक्स हॉलीडे का नॉर्थ ईस्ट में बेनिफिट है, टैक्स हॉलीडे पीरियड दे रहे हैं. जैसे कि पता है दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे एट द टाइम टैक्स हॉलीडे पीरियड चल रहा था. 80 सेक्शन 80 की 80 IA की सीरीज के में 10 इयर्स का एग्जाम्पशन बेनिफिट मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो वो सारी चीजें ग्रांट्स के अंदर कवर नहीं होंगी. दैट इज असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट. लाइक इनकम टैक्स एग्जम्पशन, जैसे अपना सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस हो गई या अदर्स कोई सेक्शन की एग्जम्पशंस हो गई, दैट आर नॉट कॉल्ड अंडर ग्रांट. एंड सेकंड थिंग, कभी कभी क्या होता है, कभी कोई कंपनी सीक हो जाती है या कोई कंपनी अपने अफेयर्स को प्रॉपर्ली चला नहीं पा रही है, तो कभी कभी क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसके अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाती है. वो एज एन ओनरशिप पार्टिसिपेट करने लगती है कंपनी को अच्छे पोजीशन पे लाने के लिए. तो उसको भी ग्रांट की परिभाषा में हम नहीं ला सकते, उस पर भी AS 12 एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये तीन चीजें हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देनी होंगी कि इन केसेस में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और इंड AS 20 एप्लीकेबल नहीं होगा. ये ग्रांट की परिभाषा में कवर नहीं होगी. मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट? असिस्टेंट वाज अ काइंड ऑफ बाय द गवर्नमेंट इन अ कैश और काइंड with certain specific conditions. These do not include such grant from government which cannot be measured reasonably. Also, the transactions with the government which cannot be separately identified
for normal trading of the organization are not considered as a grant. For example, receipt of cash on sale of packaged drinking water to the railways by rail need. जैसा कि जो भी ट्रांजेक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड बी नॉट कंसिडर एज एन ग्रांट, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया. Method of accounting for government grant. Basically, there are two methods. One is capital, second is revenue or income approach. There are two types of method outlated in accounting standard. The method of accounting for any grants is always based on the nature of the grant received. Grant bailout है, non bailout है, specific है, non specific है, क्या term and conditions है, क्या parameters हैं grant के. On that basis, we will apply. These grants are recognized only where a certainty exists for the fulfillment of the condition and ultimate collection of grant. Two conditions बहुत important है. At what time we have to recognize the grant in our books of account? There are two conditions should be fulfilled. First one is the grant are recognized only where there is certainty exists. जहां पे certainty exist करेगी grant मिलने की, जो भी हमारे parameters हैं वो fulfill होंगे, then after we have to recognize. और साथ के साथ ultimate collection of such grant. उसी parameter पे हम grants को recognize करेंगे अपने books of account में. What is capital approach? To state simply, these grants are treated as a part of capital or shareholder funds. These are such grants which are given as a proportion of total investment in the business. Ordinarily, the government does not accept a repayment of such grant. Due to this reason, such grants are credited to capital or shareholder funds. These grants are divided primarily into three types. First one is non-monetary grants. Second one is a proportion of capital in the business and for specific assets. ये जो ग्रांट होती है सर एंड मैडम, स्पेसिफिक कैपिटल कोस्ट की जो ग्रांट होती है ये गवर्नमेंट कभी भी आपसे वापस नहीं लेती है. रिकरिंग जो एक्सपेंस के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए, जिसको इनकम और रेवेन्यू अप्रोच के ग्रांट जो होते हैं उसको फ्यूचर में गवर्नमेंट कभी कभी हमारे टर्म एंड कंडीशन पर ऐसा डिपेंड कर सकता है कि गवर्नमेंट में मान लीजिए कोई सर्टेन पीरियड है 4 इयर्स का, 10 इयर्स का, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइन है कि हाँ ये पैरामीटर आप फुलफिल करेंगे तो इन द फ्यूचर हम उस ग्रांट को वापस लेंगे, उसका भी ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे. लेकिन कैपिटल अप्रोच में जनरली गवर्नमेंट ग्रांट्स को वापस नहीं लेती है और वो 3 तरह के ग्रांट होते हैं. नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस एंड किसी एसेट्स के लिए, किसी पीपीई के लिए स्पेसिफिक ग्रांट दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. Accounting for grant as a proportion of total capital in a business, the non-monetary grants are those which are given in the form of resources such as land, building. These grants are usually given at a concessional rate or free. These grants should be accounted for at the acquisition cost. अगर acquisition cost नहीं है, then we have to be recognized at a nominal value, given free of the cost. Where grants are such a nature that they are treated as a proportion of the total capital in a business, they are treated as a capital reserve shown as a capital part. Capital shareholder fund का जो भी block profit है वहां पे हम उसको show करके चलेंगे. This way, the amount received will not have any effect in the income statement or of fixed assets carrying amount. This means that amount cannot be distributed as a dividend to shareholders. मैंने अभी एक word बोला block profit. Block profit जनरली जब भी शेयर होल्डर में हम शेयर होल्डर फंड जब भी बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो जनरली हम प्रॉफिट को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक प्रॉफिट करते हैं. लेकिन इस केस में जब कभी भी हम ये एंट्री पास कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व्स के थ्रू, हम अगर कोई हमारी ग्रांट्स को हम मूव कर रहे हैं तो दैट अमाउंट शुड बी नॉट कंसीडर एज न कि वो शेयर होल्डर का डिविडेंड है. ब्लॉक उसके लिए भी किया जाता है प्रॉफिट, बट ये जो अमाउंट होगा, ये जो शेयर कैपिटल का रिजर्व का पार्ट होगा, ये ब्लॉक होगा ग्रांट्स के लिए कि शेयर होल्डर लोग आप ये ना समझें कि ये प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये प्रॉफिट हमारा कंपनी के अफेयर से कमाया हुआ प्रॉफिट है. ब्लॉक प्रॉफिट दूसरे पर्पस के लिए, ना कि डिविडेंड पर्पस के लिए. जनरली हम किसी भी प्रॉफिट को, जो भी अफेयर्स हम कंपनी अपनी अफेयर्स चलाती है, ड्यूरिंग जो भी प्रॉफिट्स होते हैं हम उसको ट्रांसफर करते हैं अपने कैपिटल रिजर्व्स में, ब्लॉक किया जाता है सर्टेन पैरामीटर्स के लिए. तो ये जो होता है बेसिकली दैट अमाउंट शुड बी नॉट ट्रांसफर्ड टू डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, as they are not eligible to be considered as a deferred income. Accounting for grants for specific asset, that is very important.
एसेट्स की हिसाब से हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे? अगर स्पेसिफिक एसेट्स के लिए हमें कोई ग्रांट दे रहा है तो these are such grants which have a primary conditions attached to them. The organization receives such grant must be as a construct, acquire or purchase such as specific assets for which such grant are given. Other condition may be also imposed as a type of assets, location of assets, and period of acquisition. एसेट्स के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल, या तो जो भी कैरिंग अमाउंट है, जो भी क्वालिफाइंग की परिभाषा के हिसाब से जो पीपी की कॉस्ट आ रही है, उसमें से वो आप ग्रांट अमाउंट को रिड्यूस करिए और बैलेंस अमाउंट पे ही आप डिप्रिसिएशन चार्ज करिए। अदर पार्ट पे उसको लायबिलिटी साइड में हम शो कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड को हम डिटेल में समझेंगे। द कंपनी सपोज दैट उसको ग्रांट मिली, the grant is reduced from the gross amount of the assets to be calculated at the book value. This signifies that the grant is being recognized in the profit and loss as a reduced charge of depreciations over the life of such assets. एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, एबीसी लिमिटेड परचेज की है एक मशीनरी फॉर रुपीज ऑफ 30 lakhs, इसकी यूजफुल लाइफ 5 years है, नील सेल्वेज वैल्यू है, इट गेट्स 10 lakhs as a grant from a government for this machinery. The gross value of the machinery क्या शो होगी? 30 minus 10, that is 20 rupees 4 lakhs, जिसपे की डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे हर साल। हमारा लाइफ क्या है एसेट्स का? 5 years है, सेल्वेज वैल्यू यहाँ पे नील है, तो 20 हमारी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी एसेट्स की बुक वैल्यू पे, डिवाइडेड बाई 5, 4 लाख रुपीज हम ईयरली रिकॉग्नाइज करेंगे। एक ट्रीटमेंट तो हमारा ये है। सेकेंड मेथड, the grants are treated as a deferred income in the financial statement. These income are recognized gradually in a profit and loss account over the use life of an assets or say in the proportion of depreciation on such assets. कहने का एग्जांपल क्या है? लायबिलिटी साइड में आपने अमाउंट को डिफर्ड कर दिया और जो लाइफ है एसेट्स की, जैसे सपोज दैट पिछले एग्जांपल में एसेट्स की लाइफ क्या थी? 5 साल, तो जो भी इनकम है, इनकम डिवाइडेड बाई 5 और ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर जो भी एसेट्स की लाइफ है हम क्या करेंगे? उसको रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इन द हेड ऑफ अदर इनकम। एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 30 lakhs, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, जिसका सैल्वेज वैल्यू नील है, इट गेट्स 10 lakh rupees as a grant from the government. The total value of the machinery is 30, बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, along with 10 rupees and a grant, दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे as a 10 rupees and as a grant। और जो ग्रांट की जो वैल्यू है रुपीज 30 lakhs, डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते रहेंगे हर ईयर, क्योंकि हमारी यहाँ पे बुक वैल्यू क्या हो रही है एसेट्स की, हम यहाँ पे ग्रांट के अमाउंट से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। फर्दर ग्रांट को एसेट्स के लाइफ पे डिवाइड करके हर ईयर 2-2 लाख रुपीज हम रेवेन्यू उसको दिखाएंगे, अदर इनकम हेड में उसको शो करेंगे। इनकम अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे, रेवेन्यू अप्रोच भी इसका एक नाम है। गवर्नमेंट विच रिलेट टू रेवेन्यू आर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एज एन अदर इनकम। They can also be deducted from the related expense in the profit and loss account. For example, grants for electricity expense of a manufacturing company. ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है मैडम सर कि कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी मिलती है कि मैं आपको सब्सिडाइज्ड रेट में आपको टैरिफ प्रोवाइड करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक रेगुलेटरी कमीशन होती है, जैसे कि यूपी में यूपी रेगुलेटरी कमीशन, दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो कभी कभी क्या करते हैं ये लोग ईयरली अपने टैरिफ को रिवाइज करते हैं। सपोज दैट गवर्नमेंट कभी किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए टैरिफ ले आती है, लेकिन टैरिफ ईयरली एक ही बार रिवाइज होता है इन द मंथ ऑफ फरवरी। अगर किसी कंपनी का टैरिफ रिवाइज नहीं हो पाया, उसको सब्सिडाइज्ड रेट में टैरिफ नहीं मिल पाया, जैसे सपोज दैट अगर 8 रुपए टैरिफ है, हम मान लीजिए हम मेट्रो रेल चला रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, गवर्नमेंट मैं मेट्रो रेल चला रहा हूँ, कृपया करके मुझे सब्सिडाइज्ड रेट पे टैरिफ रेट दें, क्योंकि हमारा जो मेजर कॉस्ट ऑफ पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। 40% तो हमारा टैरिफ, जो हमारा रेट जो टिकट होगा कंज्यूमर पे जो बर्डन पड़ेगा, हमारा 40% तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट रहेगा। कृपया करके हमें कुछ कंसेशनल रेट में दें, 1-2 रुपए हमारा रेट रिड्यूस करें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी रेट तो रिड्यूस कर देती है, कभी कभी क्या होता है सर, ईयरली टैरिफ रिवाइज होते तो वो रेट नहीं दे पाते, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा मंथली, उसमें मैं क्या करूंगा, 50% या 40% वी विल पे एज एन ग्रांट।
तो ये हो गया इनकम अप्रोच ग्रांट, ये हो गया रेवेन्यू अप्रोच ग्रांट। तो उसके लिए हम कैसे उसकी रिकॉग्निशन करेंगे, उसका दो मेथड है। जो आपको मंथली इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है, या तो आप उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन अदर इनकम हेड में दिखाएं, या जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जैसे अगर 100 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, आपको 40 रुपए सरकार की तरफ से बिल गया है वो इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट दिखाएंगे वो 100 माइनस 40 करके नेट 60 रुपीज दिखाएंगे। दो ट्रीटमेंट है, इस टेबल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग फॉर रिसीप्ट ऑफ ग्रांट, ट्रीटमेंट एज एन रेवेन्यू ग्रांट ऑन द रिसीप्ट, सो एज एन डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस। स्पेसिफिक एसेट्स के लिए जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं, मेथड 1 मेथड 2 है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। ग्रांट फॉर प्रोपोर्शन फॉर कैपिटल अमाउंट शुड बी चार्ज इन कैपिटल रिजर्व, ये हमने ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं पीछे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रांट रिफंड होता है किसी भी केस में, चाहे वो जनरली कैपिटल अप्रोच में और जो फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच लिंक होती है उसमें ग्रांट हमारी वापस नहीं होती है। जनरली इनकम और रेवेन्यू अप्रोच के जो ग्रांट होते हैं उसमें हमारी कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद 5 साल या 10 साल जो भी टेन्योर हो, हमें ग्रांट वापस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उस केस में क्या करना होगा, एट द टाइम ऑफ रिफंड द गवर्नमेंट treated as a revenue grant on the receipt, deduct from deferred credit balance any balance after deduction in charge of profit and loss account immediately as an expense for assets। अगर एसेट, जनरली एसेट्स में ऐसी कंडीशंस होती नहीं है, अगर एसेट्स में भी अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कंडीशन लगा दिया है कि हाँ मैं आपसे ड्यूटी जो भी मैंने आपको ड्रॉबैक दी है या जो भी आपको सब्सिडी दिया है मैं वापस ले लूंगा कुछ साल बाद, जनरली एसेट्स के केस में होता नहीं है। अगर है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अमाउंट डिडक्टेबल इनिशियली एज एन इंक्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेथड 2 डेफर्ड इनकम बैलेंस इज डिक्रीज इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रोपोर्शन के वे में होगा, अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम अ कैपिटल रिजर्व, सिंपली वी विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व। मेजर डिफरेंसेस हम लोग समझेंगे यहाँ पे सर एंड मैडम। व्हाट आर द डिफरेंस, क्या है इंड एस 20 में एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। इंड एस 12 requires to disclose on financial statement with indications and others form of the government assistance received। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं करता है, नो रिक्वायरमेंट एज डू नॉट डील विद द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस। दूसरा पैरामीटर समझेंगे डिफरेंस का, recognition of grants directly to the shareholder funds is prohibited as per the Ind AS, but accounting standard कहता है हमारा अगर grant for non depreciable assets है that are required to be shown as a capital reserves under the head of shareholder fund, government's grants in the nature of capital contribution are not recognized, but accounting standard 12 के हिसाब से चलेंगे, स्पेशली requires the government's grant as a capital contribution should be recognized। चौथा डिफरेंस हम समझेंगे, requires to recognize non-monetary grant as at fair value। फेयर वैल्यू का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 डील करता है, इंड AS 103 डील करता है, उसके हिसाब से हमें फेयर वैल्यू के हिसाब से हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसा मैंने बताया था, इंड AS 2 पिलर पे टिका हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू का हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई इंड AS पे, और सब्सटेंस ओन फॉर की परिभाषा हम अगर सुनिश्चित कर लें तो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रोसीजरल पार्ट है, सारे के सारे प्रोसीजर समझाए गए हैं। अगर ये दो पैरामीटर हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो इंड AS हमारे लिए बहुत ही एक प्रोसीजरल पार्ट हो जाएगा, ना कि एक बहुत टेक्निकल पैरामीटर में कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। दो पैरामीटर अगर हम समझ लें, जैसा कि हमारा लीज का अकाउंटिंग है 115 का है, डेफर्ड टैक्स का है इंड AS 12 है, इंड AS 116 है, सारे के सारे सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं, सारे के सारे सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चल रहे हैं और फेयर मार्केट वैल्यू पे। चौथा डिफरेंस समझेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा कि इंड AS 20 में हम फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है नॉमिनल वैल्यू, या अगर इक्विजिशन कॉस्ट है, अगर इक्विजिशन कॉस्ट है आपके पास तो उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज 100 रुपीज 10 रुपीज वट एवर नॉमिनल वैल्यू इफ वी हम कंसीडर कर रहे हैं नोट्स अकाउंट्स में दिखाते हुए हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, the option to deduct the amount of a grant from the book value of the asset is not available, but as per the accounting standard 12 जो हमारा आई गैप के थ्रू जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि अदर्स कंपनियों में एप्लीकेबल है, जहां पे इंड AS एप्लीकेबल नहीं है, the option to deduct the amount of grant from the books of book value of the assets is available। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है हर टाइप की एंटिटी पे एप्लीकेबल है, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 है,
हर टाइप के संस्थानों पे एप्लीकेबल है। थैंक यू, दिस इज माय प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को सर कोई भी ग्रांट्स के ऊपर कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई भी डाउट है तो आप लोग उनमें पूछ सकते हैं। डिफरेंट ईयर में आएगी देन उसमें कैसे करना है? सॉरी सर, अगर ग्रांट मतलब तो जैसे एक अमाउंट सैंक्शन हो गया बट वी विल रिसीव इन 5 ईयर इन पार्ट्स, इन दैट केस व्हाट वी विल डू? नहीं आप सैंक्शन लेटर आपके हाथ में है? सैंक्शन लेटर मेरे को मिल गया 10 लाख का, बट आई विल रिसीव 2 लाख Every year. टू 5 ईयर। एवरी ईयर सर, Every एज एन year. डेफर्ड वी विल रिकॉग्नाइज सर। और हर साल जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको इनकम हम दिखाते चलेंगे, अदर इनकम में। या मैं एसेट में हर ईयर रिड्यूस करता जाऊं? जी 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 जी, सेम पद्धति पे करना पड़ेगा। इनिशियली आप डेफर्ड करके रिकॉग्नाइज कर लीजिए लायबिलिटी। देखिए, ग्रांट रिकॉग्नाइज करने के लिए दो ही कंडीशंस होती हैं। दो आपके पास सैंक्शन लेटर तो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। डेफर्ड रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ जो आपको ईयरली अमाउंट मिल रहा है वो डेफर्ड से लेस करते रहिए, और जो प्राप्त हो रहा है हर साल उसको एज ए रेवेन्यू आप दिखाते रहिए अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अदर इनकम हेड में। ओके सर, थैंक यू। Okay, so there was a single question already asked by the Pradeep ji. So सर कैन यू शेयर योर नंबर प्लीज? यस सर, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ सर। सर जरा बोल दीजिए, चैट बॉक्स बाद में नहीं मिलेगा, बोल दीजिए प्लीज। 9540 9540 77 77 8658 8658। थैंक यू सर। 95 40 77 86 58। ठीक है, ठीक ओके सर। Thank you so much. Thank you, sir. It's a great session. So I think it's a brief details about the grants. So, we don't have questions. So now come to the Abhishek sir. Vote for a thanks. I think Uttam Bhai is also there. First of all, I really thankful to Mangal sir. Great session it was. Even we will upload some request from our participants that please upload this video. Yes, definitely. FIA YouTube link is shared in the chat box itself. And Mangal sir, special thanks to you. Thank you, sir. सर का जो नॉलेज है वी ऑल आर इनलाइटेंड एंड नाउ आई रिक्वेस्ट टू सी उत्तम मोदी जी टू प्लीज गिव अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर द एंटायर सेशन। उत्तम मोदी जी। थैंक यू अभिषेक सर। और फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स बेसिकली एफर्ट कर रहा है प्रोफेशनल अपडेट्स के लिए, और मैं आप पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू करना चाहूंगा। ग्रेट पार्टिसिपेंट और ग्रेट स्पीकर्स दोनों मिलकर एक सेशन को ग्रेट बनाते हैं, तो आज हमने यही किया है और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू ऑल, सबको धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन हम प्रेजेंट करना चाहेंगे फिजिकली। मंगल सर, मंगल सर का सर्टिफिकेट वी वांट टू प्रेजेंट, प्लीज। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, नंबर मिल जाएगा क्या? सर का किसका नंबर मिल जाएगा? म्यूट कर देना चाहिए। मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मंगल सर, दिस इज आवर टोकन ऑफ लव टू यू। वर्चुअली हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, पर हम ये रिकॉग्निशन जरूर शेयर कर सकते हैं, और इट विल बी डिस्पैच्ड टू यू वेरी सून एट योर ऑफिस एड्रेस, एंड इट्स अगेन अ ग्रेट प्लेजर ऑफ आवर्स टू हियर someone asking किसी के नंबर सर। कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कोई नंबर शायद पूछ रहे थे। नंबर हमने शेयर कर दिए मंगल सर के, और हमारे नंबर भी, और फिया की आप यूट्यूब वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको हमारे जो आने वाले सेशंस हैं, मोस्टली हर सैटरडे 4 to 6, you can subscribe FIA for have a great knowledge. Thanks from my side. Thanks to all of you.
Thank you all. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू जी. Thank you, Sonu ji. Thanks for your great moderation. Thank you so Sadeep ji. much, sir.